Good afternoon, all, and good afternoon, viewers and the participants, and my dear students and the faculty members, and journalists and professionals, media professionals. In the connection of the national and international webinar series, today we have stalwarts and the media educators and the journalist. We can say that Professor Ujjwal K. Chaudhary sir is the Pro Vice Chancellor at Mass University, Kolkata. We welcome you, sir, on behalf of the Parel University. Welcome you, sir. So, Professor Ujjwal K. Chaudhary is a leading media and the communication academic of India, having been earlier the Dean of the Media of the Symbiosis Pune and the Amity Mumbai Universities, and the Whistling Board International Mumbai and the Pearl Academy of the Delhi and Mumbai. He is known for his convergent approach to the media education, starting from an integrated broad base, leading to the focus specialization at the top. His known face in the TV studio debates as a regular writer in Indian media. He had earlier been employed with the Business India TV, G News, Times of India Group, WHO Media, and he's also wrote the 9 academic articles, 2 books, and more than 1,000 newspaper and portal articles. So again, we welcome you, sir, on this PU webinar platform. And on behalf of the Parel University, I welcome you, sir, on behalf of the Parel University President, sir, and on behalf of the Parel University Vice Chancellor, sir, and on behalf of the Parel University Registrar, sir, we welcome you, sir. And now over to you, sir. So please deliver your speech on today's webinar, media and entertainment and the media career beyond the pandemic. So over to you, sir. And we welcome you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, Dr. Rawat, and thank you for the invitation and opportunity to address friends from Gujarat. Mara Vadjanane Namaskar. Arutha program. Happy that I'm from Kolkata. Baroda is the center of very major of learning. So you are all from the country. I've stayed in Gujarat for a long time as a work there. I'm happy to be present and address you. So before into the presentation per se, let me note that this is major. बहुत परिवर्तन हो रहा है अभी, both education and media. Not a small, it's not a increment. जो कहते हैं ना कि 4 पे चल रहे थे 5 पे आ गए. That it's a complete time shift. And वो paradigm कितना बड़ा हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसका jobs के ऊपर क्या impact. Our webinar is focusing on that. So let me go to the site also. Let me go to the presentation, and along with the presentation, I will be keeping alongside with examples and all. Yes. So we move ahead. Oh, sorry. Can you see the? Can you? Presentation? No, sir. Yes, sir. Okay. It is in process. Maybe within 30 seconds we can see. Okay. Yes, now we can see. We can see. Can you also hear my voice clear? Hear my voice? Yes, sir. But not very much. There a problem? I think voice is cracking, sir. Voice is cracking. Your voice is cracking, sir. Oh, really? There is something. Your voice, or there are some cracks. There is some thing issue. I think we have taken care of all the things. Anyway, keep speaking. If there is a problem, let me know. मैं बोल रहा हूँ. अगर कोई विषय हो, आप बताएं. So, media entertainment में detail में जाने से पहले, first let's look at the platforms. ये platform आपको है. लेकिन just to have division, 6 platforms आते हैं. सब जानते हैं. 9 platform number 1 से देखते हैं. Newspapers और magazines. ये tradition है. हम सब जानते हैं.
और एक मीडिया है आउटडोर कियोस्क सिनेमा, आउटडोर कियोस्क एंड होर्डिंग आर ऑल ब्रांडिंग रिलेटेड, इसको ब्रांडिंग के संदर्भ में यूज किया है। न्यूज़पेपर मैगजीन रिलेटेड ऑफ मीडिया। 3 नंबर जो आप यूज कर रहे हैं, अब हम आपको भी डिटेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया, वेब एक्सेट्रा। 4th, रेडियो एंड टेलीविजन ऑन मीडिया। 5th, इवेंट्स एंड रोड शो। वैसे आजकल बहुत सारा ई इवेंट्स है, ऑन रोड हो गए, लेकिन वो भी इंक्लूडेड ऑन ग्राउंड मीडिया। मीडिया ऑन द मीडिया ऑन मोबाइल मीडिया। मोबाइल मीडिया बिकमिंग द मीडियम, बिकॉज एकमात्र मोबाइल हैंडसेट में ही आप पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आपको सोशल मीडिया तो मिलता ही, वीडियो टीवी भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ई इवेंट्स भी मिलता है। काइंडली सब अपना डिवाइस को मिलिए, काइंडली रखिए। सो एनीवे, 6 media channels on which to focus. We will take. Let's start with news. Inform करे, educate करे। इसको हम जानते हैं, ऐसे इंफोटेनमेंट का जमाना है। Information plus education plus ये जो न्यूज, इसमें circulation लो हो चुका है, and it will never go back to the 2019 circulation. Whatever some people might explain, try to particular sell the ads, they might tell, but people's habits have come to change for a very long now. Yes, there are people who would be getting on newspapers or things and go ahead. From the rural India or from areas where people are located first time, but larger number of people getting online. Circulation is low. Costs are mounting. Printing, distribution, all costs have gone up. There is some device which is making sound. Please put your devices in mute. That is the normal practice in web discussions. There is no sound disturbance. There are some 1 or 2 or devices you are doing activity and it is coming. Please mute. I don't know whose sound it is, but please mute. Otherwise, it is disturbing. Okay. Costs mounting, paper printing, distribution cost. GST has been put up also. Goods and service tax has been put up on newsprint for the first time in the history of India. 5% GST has been put up. And therefore, the cost for print media has gone up in a big way. Television news, yes, it has got more attention because people were in lockdown. घर पे बैठे थे तो लोग ने टेलीविजन न्यूज देखा ज्यादा, लेकिन रिपीटेटिव, मतलब एक ही बात रिपीट हो रहा है और टाइम लिमिट होता है। अब जानते हैं कि न्यूज, फील्ड न्यूज बहुत कम समय के लिए दिखाया जाता है, ज्यादातर स्टूडियो सेंट्रिक बातें होती हैं, डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं। तो हार्ड न्यूज जो अखबार में काफी हद तक होता है, टेलीविजन में हार्ड न्यूज बहुत कम और रिपीटेटिव हो चुका है। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूसिंग। अभी तक 11,000 लोगों ने जॉब हराया, जॉब दे हैव लॉस्ट जॉब्स खोया है। 11,000 पीपल फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन चैनल्स since March 2020, which is last 10 months. So that's really a worrisome thing. But please understand, there are new jobs also being created. I will talk about that later. लेकिन जो existing अखबार है, existing television channels है, even बड़े लोग जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, वहां में भी 350 लोगों ने जॉब खोया है. So there has been an employment reduction. Television news has gone to a lot of dramatics. काफी ड्रामेटिक्स, वो आपने देखा है कोविड की बात करते वक्त एंकर पीपी पहनकर एंकरिंग कर रहे हैं, मतलब जस्ट टू शो दैट देयर वो वैक्सीन की बात करते वक्त पीपी पहनकर बात कर रहे हैं. ये ड्रामेटिक्स वैसे जरूरत नहीं है. दुनिया के सबसे अच्छे जो न्यूज चैनल्स हैं दुनिया के, दे डू नॉट रिसोर्ट टू सच ड्रामेटिक्स. बट एनीवे, दिस इज अ कल्चर दैट वी हैव गॉट हियर. TRP pressures, huge amount of TRP pressures is there. So you have to fall in line with the existing broad thinking of the people or the channels. High cost, production costs are high, so field news is getting lower and lower, lesser and lesser. अभी आप अधिकतर माने कोई भी चैनल में 60 से लेकर 90% तक सिर्फ स्टूडियो इंटरव्यूज और बातचीत होती है, डिस्कशन होती है.
हाई ट्रैक्शन, फिर भी एक आकर्षण है लोगों के बीच, बिकॉज वन गुड सेक्शन पर्टिकुलरली ऑफ द सीनियर एज, आपके जो स्टूडेंट यहाँ उपस्थित हैं उनकी उम्र का ना हो, लेकिन अधिकतर बाकी लोग वो लोग उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, टेलीविजन में जाते हैं, बड़े माने मिडिल एज एंड सीनियर एज। तो और घर में जब बैठे रहते हैं तो टीवी कंजम्पशन बोथ एंटरटेनमेंट एंड न्यूज दोनों का ही बढ़ता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी लो हो रहा है। हम जानते हैं कितना ज्यादा हल्ला चिल्लाहट और फेक न्यूज का बोलबाला टेलीविजन में है, हम जानते हैं। और कल भी हमने देखा है फार्मर्स के आंदोलन में, परसों वो भी, उसमें भी देखा है कितने फेक न्यूज उसमें भी थे, उसके पहले भी कई जगहों कई चीजों में देखा है। सो देयर इज अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। रेडियो न्यूज का एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में लीगल बैरियर है, यानी आप रेडियो न्यूज को प्राइवेट सेक्टर में दिखा नहीं सकते। गवर्नमेंट ने अभी परमिशन केवल मात्र उसके लिए दिया हुआ है, क्या कहते हैं इसको, एंटरटेनमेंट, रेडियो एंटरटेनमेंट या म्यूजिक, इस सब के लिए दिया हुआ है, लेकिन न्यूज, हार्ड न्यूज को नहीं दिया गया, जबकि इसका कोई लॉजिक है नहीं। ये एकदम पहले से ही चल रहा है, कांग्रेस के जमाने से आज बीजेपी के जमाने तक से चलता ही आ रहा है। हार्ड न्यूज टेलीविजन प्राइवेट में आ सकता है, अगर प्राइवेट टेलीविजन न्यूज, तो प्राइवेट रेडियो न्यूज का क्यों नहीं हो सकता? सो एंड ऑलरेडी देयर, अशोक मित्रा कमिटी रिपोर्ट हैज ऑलरेडी सजेस्टेड दैट, बट लेकिन अभी भी इसका पोटेंशियल होते हुए भी नहीं हुआ। मुझे लगता है आगे रेडियो न्यूज काफी आएगा। सो दिस इज द ब्रॉड कैरेक्टर ऑफ न्यूज मीडिया वी आर सीइंग। आगे जो होने वाला है वो डिजिटल लेड कन्वर्जेंस होगा, मोजो बहुत बड़े पैमाने पे आएगा। सो मैं सजेस्ट करूंगा आपके विश्वविद्यालय में भी और भारत के सब विश्वविद्यालय जहां भी जर्नलिज्म पढ़ाई जाती है, मोबाइल जर्नलिज्म, ब्रीफ में मोजो, शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट। एक पेपर नहीं, बेसिक एंड एडवांस 2 पेपर भी हो सकता है, बिकॉज मोबाइल जर्नलिज्म हैज कम टू स्टे। आगे देखेंगे आप, ऑलरेडी आप एनडीटीवी पूरी तरह मोबाइल में चला गया है। जो स्टूडियो शूटिंग होती है वो कैमरा में होती है, स्टूडियो के अंदर वाला शूटिंग, लेकिन जो शूटिंग आपका फील्ड में होता है वो कंप्लीटली मोबाइल से होने लगा है। वो गैलेक्सी नोटबुक 10 उससे हो रहा है, गैलेक्सी नोट 10 उससे हो रहा है, और उससे भी एडवांस्ड और भी एक मॉडल है, उसको भी यूज करते हैं। सो मोबाइल जर्नलिज्म हैज कम टू स्टे, और जर्नलिज्म ही है। आप मोबाइल में शूट करें, कैमरा में करें या कलम से लिखें, बेसिक जर्नलिज्म एथिक्स एंड इश्यूज आर द सेम, बट मोबाइल में स्पीड बहुत बढ़ता है, इजी टू कैरी है और इजी टू प्रोड्यूस है, एंट्री बैरियर बहुत कम है, कम पैसे में शुरू की जा सकती है। सो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इंफोग्राफिक्स एंड पिक्चर्स, पांचों कन्वर्ज कर रहे हैं मोबाइल जर्नलिज्म में या डिजिटल जर्नलिज्म में, इंटरनेट जर्नलिज्म में। देखो, ऑडियो रेडियो के लिए है, ऑडियो और वीडियो मिलाकर टेलीविजन के लिए है, टेक्स्ट, इंफोग्राफिक्स और पिक्चर्स प्रिंट के लिए है, लेकिन एकमात्र डिजिटल में पांचों आ जाता है। सो इट इज कन्वर्जिंग एंड दैट्स रियली अ गुड थिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड। सो अभी जो लोग नौकरी खो रहे हैं वो लोग हैं जो आइदर टेक्स्ट में एक्सपर्ट है या पिक्चर्स में या कोई वीडियो में, लेकिन ये पांचों का यूज करने की क्षमता ये अधिकतर लोगों में नहीं है। आपके न्यू जनरेशन ही कर पाएगा जो ये पांचों चीज डिजिटल जर्नलिज्म के लिए पांचों कर पाएंगे। सो द करियर्स दैट यू विल हैव इन जर्नलिज्म will focus on all the 5 areas, and please ensure that you learn that now. Lower entry barrier, आप तो कॉलेज में भी एक समझो एजुकेशनल पोर्टल बना सकते हैं इजीली, खर्चे बिना, मैंने 50,000 भी खर्चा नहीं है। तो न्यूज पोर्टल बनाने में उससे ज्यादा खर्चा जरूर है, लेकिन काफी लेस देन अ न्यूज पेपर और अ न्यूज चैनल। एक्यूरेट एनालिटिक्स, आप कभी बोल नहीं सकते कि किसी भी चैनल का कितना एग्जैक्टली व्यूअरशिप है। आप तो अभी देखे हो, रिपब्लिक टीवी एक्सपोज हुआ है किस तरह से वो लोग फेक व्यूअरशिप क्रिएट करते थे। ऐसे बहुत लोगों ने भी इन्फ्लुएंस किया होगा, बाकी सब लोग एक्सपोज नहीं भी हुआ होगा, लेकिन you cannot have a calculation of viewership. Similarly, you cannot have an exact calculation of readership. आप बोल सकते हो कि हम 50,000 कॉपी छापते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि 5 लाख लोग पढ़ते, 3 लाख लोग पढ़ते। गेस एस्टिमेट कर सकते, गेस एस्टिमेट, यू कैन डू अ गेस ओनली इन केस ऑफ डिजिटल। यू कैन एग्जैक्ट कितने लोगों ने विजिट किया है पोर्टल को, एक न्यूज को कितने लोगों ने देखा है, और कितना सेकंड वो बिताए हैं उसमें। How many seconds or minutes did the person spend on that particular portal or that particular news item? You can actually calculate through Google Analytics, and there are now advanced other analytics also. So accurate analytics संभव है, जो एकमात्र डिजिटल में ही संभव है। Focused business option,
आप आपके जो एडवर्टाइजर है उसको आप एग्जैक्ट बोल सकते हो कि कितने लोगों ने देखा है, कहाँ से, दिन के किस समय में देखा है और कितने देर तक उस चीज को देखा है या पढ़ा है. So you can give, therefore you can give the option of advertising very perfectly. But television और रेडियो और आपका अखबार गेस एस्टिमेट पे चलता है. क्राउड सोर्सिंग पॉसिबल, यानी जनता से पैसे उठाकर न्यूज पोर्टल चलाना संभव है. where.in का एग्जाम्पल है, स्क्रॉल का एग्जाम्पल है, देयर आर मेनी. अब जो एक अखबार था इंग्लैंड में, लंदन में, द गार्डियन, वेरी फेमस न्यूज़पेपर, they have become the guardian.com now. Print is stopped there, and the guardian.com is raising money from the public, crowdsourcing. There are crowdsourcing के बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जिससे आप उठा सकते हैं. मोजो क्यों फेमस होगा जर्नलिज्म में? मोजो क्यों फेमस होगा? पोर्टेबल है. या डिजिटल क्यों फेमस होगा? पोर्टेबल है, आप मोबाइल को साथ में लेके चल सकते हो. अपडेटेड, न्यूज इज अपडेटेड रेगुलरली. सर्च ड्रिवन, एकमात्र न्यूज आइटम, मीडियम जो आप ढूंढते हो न्यूज को. अखबार आपको फिक्स्ड न्यूज देता है, टेलीविजन तो और फिक्स कर देता है, पहला ये देखना, उसके बाद ये देखना, उसके बाद ये देखना है. लेकिन एकमात्र डिजिटल है जो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, आप ढूंढते हो जो आपको पढ़ना है. सो लोअर कॉस्ट टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम. यूजर जनरेटेड कंटेंट, जो आदमी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी कंटेंट जनरेट करते हैं. सिटीजन जर्नलिज्म, yes, the editorial team has to select, cross verify, but you have more sources of journalism through the digital than through print or TV. Crumbling gatekeeping, पहले था क्या? gatekeeping होता था, कितने लोगों को घुसने देना है, मतलब कितने लोगों की बातों को रखना है, नहीं रखना है. अब गेट ओपनिंग हो रहा है, कोई भी अपना मीडिया में अपनी बात रख सकता है. इसका एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फॉल्स कंटेंट है. मैं फेक न्यूज इसलिए नहीं बोलता कि इफ इट इज फेक इट इज नॉट न्यूज, इफ इट इज न्यूज इट इज नॉट फेक. सो देयर इज अ चैलेंज ऑफ फॉल्स कंटेंट. झूठ मूठ का दो तरह का है, या आप एक झूठा खबर बनाते हैं और झूठी खबर को फैलाते हैं तो वो डिसइंफॉर्मेशन है, या दूसरा कोई और बनाता है लेकिन आप फैलाते हैं, उसको मिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. मिस में इतना प्रॉब्लम या इतना पनिशमेंट नहीं है, डिसइंफॉर्मेशन में सीरियस पनिशमेंट है. मीडिया लिटरेसी मूवमेंट, इसलिए क्या चाहिए रोकने के लिए? मीडिया लिटरेसी मूवमेंट, कैसे फेक न्यूज समझा जाए, अच्छा बुरा में फर्क कैसे किया जाए, ऑल दिस कम अंडर मीडिया लिटरेसी. अच्छी फिल्म बुरी फिल्म क्या है? सो मीडिया लिटरेसी मूवमेंट, and in my opinion media literacy course must be there in every media degree of the country. Many have started, we have also started, but it must be there because it teaches the students to differentiate between good and bad, wrong and right, false and right. And very important to understand, news media, particularly news media, is a watchdog. जो भी क्षमता में है, पावर में है, उस पर नजर रखने के लिए watchdog, not a lapdog. यानी गोदी मीडिया नहीं, ये वॉचडॉग है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल वी लुक एट न्यूज मीडिया ऑफ द फ्यूचर. न्यूज मीडिया ऑफ द फ्यूचर, these are the things that we need to mind. These are two stories of digital story, बहुत अच्छे digital story. I can share this presentation with the honorable dean there and he can share all. आप इसमें देख सकते हैं कैसे मोबाइल को यूज करके डिजिटल स्टोरी बनाया जाए, उसका एग्जाम्पल है. सो न्यूज मीडिया अभी जो न्यू नॉर्मल बन रहा है 2021 का, अब पुराने वाले टैलेंट के जॉब चले जाएंगे लेकिन नए वाले टैलेंट नहीं मिल रहे अभी तक. नए वाले टैलेंट इज यू. ये टैलेंट जो मोबाइल से न्यूज बना सकता है, जो न्यूज को वीडियो में भी दिखा सकता है, ऑडियो में भी बता सकता है और लिख भी सकता है एक साथ में. पहले वाले टैलेंट था जो लिख सकता है वो दिखा नहीं सकता, जो दिखाता है वो अच्छी तरह लिख नहीं सकता, जो स्टोरी कलेक्ट करता है वो एडिट नहीं कर सकता, जो एडिट करता है वो कलेक्ट नहीं कर सकता, गैदर नहीं कर सकता. सो दीज वर द प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्लियर टैलेंट. दैट इज व्हाई पीपल आर लूजिंग जॉब्स. ऑल्सो देयर सैलरीज हैव गॉन अप बट देयर टैलेंट इज नॉट मल्टीफेरियस और दे आर नॉट मल्टी स्किल्ड. अभी आपको चाहिए मल्टी स्किल्ड होने का. इसलिए आई अर्ज अपॉन यू, अगर वाकई आप जर्नलिज्म करियर के लिए सीरियस हो तो एक तरफ में जैसे आप बहुत लोगों को सुनने आना, आई रियली सैल्यूट योर डीन डॉक्टर रावत फॉर calling almost one good speaker every day. आप सोचो इतने लोगों को अगर शहर में, आपके शहर में बुलाकर अगर क्लास करते हैं, लाखों रुपया जरूरत होता उनको उड़ाने ले जाने में, रखने में वगैरह. So this is a good thing, is making use of time.
बट साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। जो आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं ऑनलाइन, ऑन डिजिटली, you have to do the practice. You have to prepare story item, 3-minute, 4-minute stories on mobile. People are, Al Jazeera is producing full documentary on mobile. Irish television, IR9, I think that channel name, is also producing full documentary on television, on mobile. So we need to understand that convergence, digital-led convergence is happening in news. यानी डिजिटल मीडिया पूरे न्यूज मीडिया को लीड कर रहा है, उसके साथ बाद में टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट आ रहे हैं। प्रिंट घटता जा रहा है, लेकिन टेलीविजन और रेडियो अभी भी फ्यूचर है। रेडियो का फ्यूचर को तो हमने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया ही नहीं है, और टेलीविजन अभी तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन टेलीविजन में क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है। बट डिजिटल इज ऑन द राइज, दैट्स द पॉइंट। सो रेवेन्यू मूविंग बियॉन्ड एड्स, ये एक नई चीज है। पहले केवल न्यूज मीडिया में एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू आता था, अब क्राउड सोर्सिंग से रेवेन्यू आ सकता है, एडवर्टोरियल से रेवेन्यू आ सकता है, सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू आ सकता है। सो नए तरीके के रेवेन्यू आने के रास्ते खुले हैं। दिस इज अनदर थिंग। सर्च मीडिया अब पुश मीडिया, मैंने बताया टेलीविजन पुश करता है न्यूज, आपको पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है। अखबार भी एक हद तक पुश करता है, फर्स्ट पेज में ये है, थर्ड पेज में ये है, फिफ्थ पेज में। आप फर्स्ट 5 पेज नहीं पढ़ के छठा पेज पढ़ सकते हैं, दैट मच चॉइस यू हैव। टीवी में तो उतना भी चॉइस नहीं है, लेकिन डिजिटल में पूरी तरह चॉइस है। आपको फार्मर्स मूवमेंट देखना है तो वही देखिए, आपको जीडीपी ऑफ इंडिया देखना है देखिए, सर्च करके आप उसी को ही देख सकते हैं, उसी के सारे स्टोरीज आपके सामने आ जाएंगे। डिजिटल के सबसे बड़ा बेनिफिट है न्यू डायमेंशंस ऑफ जर्नलिज्म। अब जर्नलिज्म एक ही बात को, सेम स्टोरी, यू विल प्रेजेंट इट ऑनलाइन, you will present it in a video format on TV, you will present it in a short written report in newspaper, you will present it in as a podcast. Podcast माने आपकी आवाज रिकॉर्ड होगी, आपने आवाज में कहानी बताया, उसको लोग सुनेंगे, दैट्स पॉडकास्ट। ये सारे नए डायमेंशंस हो रहे हैं जर्नलिज्म के। पहले का जो जर्नलिज्म में हम लोग एक आध मीडिया को ही देखते थे, बहुत ज्यादा केवल कंटेंट के उस सही हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर हम बैठते थे, वो भी जरूरी है, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म रहेगा हर समय, लेकिन अब कंटेंट को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके बन गए हैं, और आगे और भी तरीके देखेंगे। केवल एक कंटेंट को 256 कैरेक्टर्स में भी बोलना जरूरी है, ट्विटर में 100 वर्ड में बोलना जरूरी है, लिंक्डइन में या फेसबुक में, या 200 वर्ड में, 50 वर्ड में आप बोलना जरूरी है, इंस्टाग्राम में साथ में वीडियो, छोटा वीडियो या फोटोग्राफ डालते हुए। तो ये जो आ गया है, दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट डायमेंशन दैट्स कमिंग। साथ साथ में अखबार में भी लिखना है, और अखबार का जो पोर्टल है उसमें भी लिखना है, एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से। अखबार सुबह निकल जाती है, लेकिन पोर्टल दिन भर में अपडेट होता रहता है। सो दिस इज द न्यू नॉर्मल। अगर आपको ये सारे स्किल्स आते हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्व्स, देन यू हैव जॉब्स। But if you go and tell, I have a degree from this university, can I get a job? People don't have jobs. If you tell, I have got a graduation degree, but I can make the same story for the print, for the television, for the radio and for the internet, तो लोग हिल के बैठते हैं, अच्छा show me। तो पुराना कोई आपने किया होगा तो काम दिखाइए। तो पोर्टफोलियो होना जरूरी है। तो जॉब्स के लिए पोर्टफोलियो होना जरूरी है, और जॉब्स के लिए डिजिटल ड्रिवन होना, टेक्नो सेवी होना, मल्टी स्किल्ड होना, ये बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ा सा अलग मीडियाज को देखेंगे। हमने अभी न्यूज मीडिया देखा, लेट अस लुक एट सिनेमा। सिनेमा अब 1, 2, 3 को देखिए। अभी जो सिनेमा में हुआ है, थिएटर्स हैव अ लॉन्ग क्लोजर। हम जानते हैं कि आवर फिल्म हॉल्स वर आल्सो क्लोज्ड। नाउ सम फिल्म हॉल्स हैव बीन ओपन 50% कैपेसिटी, समवेयर 30% कैपेसिटी, so somewhere 60% like that। बट अब्रॉड में, यूएस में सबसे ज्यादा थिएटर का सीरीज का नाम है AMC, और यूरोप में उसका नाम है सिने वर्ल्ड। और सिने वर्ल्ड के 35-40% आउटलेट या सिनेमा हॉल कंप्लीटली बंद हो गए, और बाकी जो चल रहे हैं उसमें 30-40% कैपेसिटी अलाउड है। जो बंद हो गए वो पूरी तरह दूसरी चीज में चले जा रहे हैं, जनरल हॉल या दुकान या स्टॉल, अलग अलग चीज बन रहे हैं। सो दिस इज सैड बट इज हैपनिंग। यानी people have moved now from the broad cinema format to personalized entertainment on laptop and mobile. इसका मतलब
सारे सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, सारे ब्लॉकबस्टर बंद हो जाएंगे? नहीं, मैंने 6 नंबर में यही बोला है, 6 नंबर पॉइंट में, ब्लॉकबस्टर्स विल रिमेन, बट स्मॉल एंड मीडियम बजट वो ऑनलाइन में आएगा। और 2 नंबर में आइए, फीचर फिल्म के अलावा शॉर्ट फिल्म और ओटीटी का करियर बहुत अच्छा खड़ा है अभी। आप पहले ओटीटी पहले भी, अगर 100 आदमी ओटीटी पिछले 10 महीने 800% हो गया, यानी 700 लोग और जुड़ गए, इतना बड़ा हुआ है। नेटफ्लिक्स में 9 टाइम्स हो गया, नाउ टाइम्स, यानी 100 पे 900 लोग जुड़ गए। दिस हैज हैपेंड ओनली 10 मंथ्स, और पहले तो पिछले 5 साल में हुआ था। 5 को 100 आदमी मिला और पिछले महीने में वो 900 हो गया, यानी 9 टाइम्स हो गया, 9x। सो शॉर्ट फिल्म्स एंड प्लीज फीचर्स एंड फीचर का मतलब होता है 45 मिनट से 40 मिनट से ज्यादा, लेकिन 1.5 घंटा कम। 1.5 घंटा से ऊपर हो तो वो फीचर फिल्म है, 1 घंटे से कम हो तो फीचरेट है, और 40 मिनट से कम हो तो शॉर्ट फिल्म है। शॉर्ट फिल्म और ओटीटी फीचर और फीचर दोनों को रिलीज कर रहा है। न्यू लाइफ टू इंडिपेंडेंट सिनेमा, स्टूडियो बेस्ड सिनेमा, जैसा यश राज फिल्म्स है, YRF, या वो 20 बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, और बहुत सारे होते हैं व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल बेस्ड इंडस्ट्री, एंड देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट सिनेमा इंडिविजुअल्स व्हिच इज कमिंग अप, क्योंकि ओटीटी फिल्म बनाना सस्ती है। और जैसे आपने देखा, वो सिताबो ओटीटी रिलीज हुआ है, बहुत सारे और फिल्म ओटीटी में रिलीज हुआ है, अब्रॉड में भी हुआ है। स्टोरी इज बिकमिंग हीरो, 3 नंबर, स्टोरी इज बिकमिंग, था कि आप बहुत ज्यादा स्टार्स के बेसिस पे फिल्म चला सकते हो, आप एक आध ब्लॉकबस्टर ही कर सकते हैं, अधिकतर फिल्में स्टोरी पे चलेगी, यानी नए टैलेंट को स्कोप मिलेगा। लेस कैरेक्टर्स बट मोर इंटेंस, एक्टिंग करने वाले कैरेक्टर कम होंगे, लेकिन उनका एबिलिटी, उनका स्किल सेट बहुत ज्यादा होगा। कॉस्ट आर लोअर्ड, यानी खर्चे घटेंगे। प्रोडक्शन बिकमिंग सिंपलर, और रियल लाइफ सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करेगी ये सारी फिल्में। दिस इज बिकमिंग द कैरेक्टर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स। अगर आप देखो अभी के जो फिल्म रिलीज हो रहे हैं, सब में ही स्टोरी पे फोकस है, कैरेक्टर्स कम है, खर्चे पहले से बहुत कम है, और रियल लाइफ के संदर्भ। हाँ, 2 इमेजिनेटिव बनेंगी, बस्टर बनेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली लेस देन 19 ईयर। 2019 बॉक्स ऑफिस इनकम बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है ये। सारी दुनिया में जितने सिनेमा हॉल है, सबका मिलाकर $42 बिलियन हुआ था पिछली बार 2019 में। $42 बिलियन, करीबन आपका करीबन आपका 3 लाख करोड़ के ऊपर है, 3-3.25 लाख करोड़ है रुपया, $42 बिलियन। और 2019 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी ओटीटी और बाकी सब मिलाकर $53 बिलियन हुआ था। $53 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ के से ज्यादा। जब पैंडेमिक नहीं हुआ है, पैंडेमिक दिसंबर 2019 में हुआ, आपको मालूम है, चाइना में, और दुनिया में स्प्रेड फरवरी और मार्च में आके किया। सो जब पैंडेमिक नहीं हुआ तभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का इनकम बढ़ गया था। इस बार 2020 का रिपोर्ट अभी आएगा कुछ ही दिनों में, उसमें आप देखेंगे, मार्च महीने में आएगा, देखेंगे। मैं अभी से कह रहा हूं कि बॉक्स ऑफिस इनकम $10 बिलियन भी नहीं होगा, 10 के नीचे होगा, और प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, स्ट्रीमिंग वीडियो सब मिलाकर $100 बिलियन से ज्यादा होगा। और आगे भी प्लेटफॉर्म का इनकम बॉक्स ऑफिस से ज्यादा होगा ही। CPH डॉक्स 5 नंबर, CPH डॉक्स ये दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल है। इसके अलावा फिल्मों की बड़ी फेस्टिवल होता है कान फेस्टिवल, देयर इज ऑल्सो ऑस्कर्स फेस्टिवल, अवार्ड देने का। ये सारे दुनिया के सबसे बड़े बड़े ऑडियो विजुअल फेस्टिवल इस बार डिजिटली हुआ है। और CPH डॉक्स उसमें अटेंड करने के लिए दुनिया के कहीं से भी आदमी रजिस्टर करके और $5 यानी 350 रुपए का टिकट देकर 1 महीने का फेस्टिवल में घुस सकता था कहीं से भी। इसके बेसिस पे ऑडियंस बढ़ गया है, क्योंकि पहले छोटे छोटे देशों से लोग जा नहीं पाते थे, क्योंकि CPH डॉक्स यूरोप में होता था, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में होता था। अब लोग ऑनलाइन होने के कारण 30% हायर ऑडियंस एंड 28% मोर इनकम
बिकॉज $5 सबको पे करना होता है। ब्लॉकबस्टर आएंगे लेकिन मिड एंड स्मॉल बजट सिनेमा ऑनलाइन ही जाएगा। सिनेमा की ये सिचुएशन है। थोड़ी सी टेलीविजन को देख लेते हैं। तो हम सिनेमा में क्या देख सकते हैं? सिनेमा में जो नौकरियां आएंगी वो डिजिटल फिल्म मेकिंग के बेसिस पे नौकरियां आएंगी। अगर आप फोकस करो डिजिटल फिल्म मेकिंग पे, एडिटिंग पे, शूटिंग पे विथ लाइटर एंड स्मॉलर कैमरास, समटाइम्स इवन मोबाइल शूट, अगर आप स्क्रिप्ट पे ज्यादा फोकस करो, स्क्रीन पे ज्यादा फोकस करो, तो आगे आगे आपका सिनेमा के संदर्भ में जॉब्स बनेंगे। टेलीविजन 1, 2, 3 से देखिए। टेलीविजन हैज गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, क्योंकि लोग घर पे अटक गए, सो टीवी देख रहे हैं। बट न्यू कंटेंट चैलेंज इज देयर। जो कंटेंट बन रहा है वो देखो, आप दोबारा फिर से महाभारत रिपीट हो रहा है, रामायण रिपीट हो रहा है, कई सारे तो नए बन रहे हैं, नए धीरे धीरे बन रहे हैं नए, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन दिया है। अगर आप हिंदी में हो, गुजराती में हो, किसी में भी देयर आर रेस्ट्रिक्शन कि 15 या 20 जन शूट कर सकते हैं, कहीं 30 आदमी को अलाउ किया गया है। सो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, देयर इज अ कंटेंट चैलेंज इज देयर। न्यूज टीवी विल डू वेल इन व्यूअरशिप। न्यूज टीवी अच्छा व्यूअरशिप मिल रहा है, लेकिन क्रेडिबिलिटी इशू हो गया है। न्यूज टीवी को विश्वसनीयता पे क्वेश्चन हो रहा है। स्टोरीज फ्रॉम ग्राउंड ऑन वेब विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वेब में से जो स्टोरीज बनते हैं, बन के आते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। देखो, ये माइग्रेंट लेबर वाला जो मुद्दा था, ये न्यूज़पेपर या टीवी ने ओपन नहीं किया, ये वेब में से आया। मोबाइल जर्नलिज्म में पहले ये कवर किया गया एंड उसके बाद बाकी लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। सो इसको समझने की जरूरत है कि stories from the web will be a challenge for TV. TV must reinvent as the conscience keeper of the nation. रेवेन्यू में प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन कॉन्साइंस कीपर मतलब विवेक, देश का विवेक, देश का दिल, देश का विवेक बने, कॉन्साइंस बने, ये रीइन्वेंट होने की जरूरत है। क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गया है और रिपब्लिक की ये कहानी के बाद तो और भी घट गया है ओवरऑल टेलीविजन की क्रेडिबिलिटी। टीवी एंड डिजिटल कन्वर्जेंस विल राइज एंड be good, so and that will be good. टीवी और डिजिटल कन्वर्जन बने, पहले स्टोरी टीवी डिजिटल में ब्रेक होगा, फिर डिटेल में टेलीविजन में आएगा। पहले कोई भी नया सीरियल, जैसा आपने देखा MX प्लेयर, वो तो टीवी में आया ही नहीं, वैसे OTT में है। MX प्लेयर में आश्रम नाम का एक सीरियल आया, पहले वो डिजिटल में अनाउंस हुआ सोशल मीडिया में, फिर जाके वो OTT में आया मैक्स प्लेयर में। इस तरह से आप सीरियल का भी देखोगे, पहले वो अनाउंस होगा, थोड़ी सी दिखाई जाएगी, ट्रेलर होगा, ये सब प्रमोशन किया जाएगा डिजिटली और फिर टीवी में आएगा। सो ये कन्वर्जेंस आगे होता जाएगा। एपिसोडिक एंटरटेनमेंट, यानी अभी होता है सीरियल, 50-100 सीरियल एपिसोड चलते रहते हैं। अब बहुत सारे कंटेंट बनेंगे टेलीविजन में, 1 घंटे का कंटेंट, एक ही कहानी, फुल कहानी खत्म एक बार में, और वो पूरा एक सीरीज है, लेकिन कहानी अलग अलग है हर सीरीज में, पूरे सीरीज में हर हफ्ते में अलग है। ये रिश्ते नाम का एक सीरियल था, उसमें रोमांटिक स्टोरीज वर टेकन बट वन स्टोरी वाज कंप्लीटेड इन एवरी वीक स्टोरी वाज कंप्लीटेड। इसको कहते हैं एपिसोडिक एंटरटेनमेंट, एक एपिसोड में कहानी। शॉर्ट फिल्म आने लगेंगे टीवी में, फिल्म प्रीमियर्स होने लगेंगे, म्यूजिक काफी म्यूजिक का टीवी बढ़ चुका है और भी बढ़ेगा। सो दीज आर टेलीविजन दैट वी आर सीइंग पैंडेमिक। रेडियो आज से देखिए, डिजिटल और एनालॉग दोनों ही राइज। डिजिटल जिसको आपको इंटरनेट के माध्यम से मिलता है, जो इंटरनेट माध्यम जिसके लिए परमिशन की भी जरूरत अभी तक जरूरत नहीं है। सरकार कह रही है कि वो लोग या रिस्ट्रिक्शन आएंगे, एक बात है, बट अब जरूरत नहीं है डिजिटल में लेने की। यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन, बट एनालॉग रेडियो आपको फ्रीक्वेंसी पे चलाना लेनी होगी। एनालॉगस रेडियो दोनों ही आगे बढ़ रहा है। रेडियो लिबरलाइजेशन इज मस्ट। अभी भी भारत में प्राइवेट रेडियो न्यूज अलाउड नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीजें रेडियो में अलाउड नहीं है, केवल एंटरटेनमेंट और म्यूजिक अलाउड है, लेकिन ये एयरवेव्स को फ्री करना बहुत जरूरी है। निश रेडियो विल राइज। निश होता है जिंदगी का एक हिस्से पे रेडियो, कोई एक एस्पेक्ट पे। आइदर नाउ इट इज एंटरटेनमेंट रेडियो, somewhat sports radio is allowed, but now we will also see lifestyle radio, body and beauty care radio, education radio, yes, health radio, city urban radio, this will also come.
campus online community or development radio will become very popular and it's already rising. आप भी अपना रेडियो बनाए कैंपस में, हमारी भी कोशिश जारी है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी है, लिखने का, बोलने का, प्रोड्यूस करने का, एडिट करने का, रिकॉर्ड करने का, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। साथ साथ पॉडकास्ट बनता जाएगा। पॉडकास्ट रेडियो की तरह ही है, ऑनलाइन ऑन एयर, मतलब केवल साउंड रिकॉर्ड करना है। अगर ये चीज आप देख नहीं पाती है पावर पॉइंट और मुझे देख नहीं पाते, मेरा सिर्फ एक बोली हुई बात आधे घंटे का लेक्चर ऐसा, तो वो पॉडकास्ट होता है। वैसे पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता है म्यूजिक के साथ। रेडियो इज गेटिंग ए न्यू लाइफ ऑल्सो बट लिमिटेड टू म्यूजिक करेंटली। देयर इज ए बिग स्कोप टू इवॉल्व। तो रेडियो को आप इग्नोर ना कीजिए, रेडियो की भी पढ़ाई कीजिए। ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में डिजिटल पहला आ रहा है। बेसिस ऑफ ब्रांडिंग डिजिटल हो रहा है। अगर लोकल कोई ब्रांड है उसमें भी लोग फेसबुक यूज करके पॉपुलर कर रहे हैं, तो छोटा हो या बड़ा हो, डिजिटल पहले, उसके बाद बाकी रूट माने प्रिंट, टीवी, रेडियो, ये बाकी रूट्स, या ऑनलाइन ऑन ग्राउंड लोग बेचते हैं ना, प्रोग्राम करके, रोड एक्टिवेशन करके, मॉल में भी प्रोग्राम करते हैं कोई भी प्रमोट करने के लिए सामान को, वो सब आएंगे। लेकिन फर्स्ट डिजिटल होगा, उसके बाद बाकी सब होगा। इसी तरफ जा रहा है अभी ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग। और ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग में कोई भी ब्रांड जो प्रॉमिस करता है अपने क्लाइंट को, वो प्रॉमिस को ऊपर फोकस होगा और स्टेक होल्डर्स यानी अपना कस्टमर्स और एम्प्लॉइज, इसके ऊपर फोकस होगा। एग्रेसिव मार्केटिंग कम हो जाएगा। अभी देखो ऑलरेडी एग्रेसिव मार्केटिंग पहले से कम गया, घट गया है, और लोग कंपैशनेट यानी मैंने प्यार भरा कंपैशनेट मैसेज दे रहे हैं, जैसे सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग के मैसेज दे रहे हैं। कोरोना वॉरियर को, हीरोज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे फॉक्सवैगन ने किया। मैकडोनल्ड, पीडीलाइट, इमामी, बायजूस, जूम, इनका पिछले 5 महीने का कैंपेन किए, ये सब फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना लेकर बात कर रहे हैं। कंपैशनेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पैशनेट, it is not enough to be passionate in the pandemic, post pandemic time. One has to be compassionate. प्यार बहुत बड़ा होना चाहिए, हृदय से रिलेशन होना चाहिए। This is coming now in a big way. And अगर आप, चूंकि पैंडेमिक चल रहा है, अगर आप अपना कोई भी प्रमोशन नहीं करेंगे तो आप जनता की नजर से हट जाएंगे। और अगर पैंडेमिक टाइम में प्रमोशन करेंगे कुछ हद तक प्लानफुली, तो आपको 3 गुना रिटर्न मिलेगा, 3x रिटर्न if rightly marketed. Health, food, essentials, hygiene, ये सारे इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। और आप देख ही रहे हो, आपके आसपास जो एडवर्टाइजमेंट देखना, बहुत ज्यादा हेल्थ, फूड, हाइजीन लेकर काफी हद तक एडवर्टाइजमेंट है। ये कुछ फिर कोरोना टाइम में, मतलब अभी के समय के एड्स हैं, बहुत अच्छे एड्स हैं। अब समय के अभाव में जा नहीं पाएंगे। और सेकेंडली, ये नेट कनेक्शन चाहिए होगा। आप लोग आराम से कभी बाद में देखना ये सब एड्स। ये अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ और सर को, तो जरूर देखिए किस तरह से लोग ये सब ऐड बनाए हैं। मूविंग अहेड, ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग इन द न्यू नॉर्मल। तो ये ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग आगे कैसे होगा? क्लटर ऑफ एड, माने बहुत ज्यादा एड बनाना या दिखाना होगा, इसीलिए आपको नहीं, कहानी बोलने की जरूरत है। एक्ट, जैसा फेसबुक कहानी बना है, फेसबुक के माध्यम से लोग जुड़कर किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई अपनी नौकरी स्टार्ट कर रहा है, कोई बैंक से लोन ले रहा है, कोई एक दूसरे को मदद कर रहा है। स्टोरीज ब्रांड होगा, इसको कहते हैं अंग्रेजी ब्रांडेड कंटेंट। ब्रांडेड कंटेंट मतलब इंटरेस्टिंग कंटेंट, कंज्यूमेबल कंटेंट, म्यूजिक, लेकिन उसमें ब्रांड है और वो ब्रांड उसका पैसा देता है। इस तरह का ब्रांडेड कंटेंट। डेडिकेटेड शॉपिंग टाइम देना, ये ब्रांडिंग का एक अर्थ हो गया। सुपरमार्केट में कोरोना वॉरियर को टाइम देना, आइकिया जो फर्नीचर की दुकान है वो भी कोरोना वॉरियर को टाइम देते हैं, बुजुर्गों को अलग टाइम देते हैं। दिस इज अनदर टाइप ऑफ ब्रांडिंग। वायरल फिल्म्स, वो जो फिल्म बना होटल है, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग को फेवर करते हुए फिल्म बना रहा है। कैडबरीज स्वीट होम्स के ऊपर कैंपेन किया है। सो दीज आर बिकमिंग वायरल फिल्म्स। सनराइज मसाले ने पहले मसाले से कैसे इम्यूनिटी होता है वो बता रहा है। Which spices boost immunity, ये बता के आखिरी वाले 1 मिनट बोलने के बाद आखिरी 15 सेकंड में सनराइज का लोगो। This is what is the new type of branding that's going to happen. These are TikTok video, long ads, ये सब तो है ही है, आप देख ही रहे हो। अभी एक 15 सेकंड वाला एड भी शुरू हुआ। कोई भी चीज आप YouTube में खोलो, पहले वो एड प्ले होगा, जाके आप देखोगे, वो भी एक नई चीज है।
That's another way. So branding and advertising इस तरह के न्यू नॉर्मल में होंगे. कोरोना इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म. 2019 में हम वापस नहीं जा रहे हैं. 2021-22 बहुत डिफरेंट होगा, इसलिए डिजिटल लेड ब्रांडिंग होगा. आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन सोचना जरूरी है. आप लोगों को फिजिकली मिल नहीं सकते, अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम हो रहा है. सो इस जगह से आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, आप किस तरह से ऑनलाइन में हृदय को छू सकते हैं. हाउ कैन यू टच द हार्ट and the brain, influence the brain of your customer online. This is the new challenge. New consumer experience in times of restricted social interaction. Social interaction काफी घट गया है. इसमें एक नए तरीके का कंज्यूमर हो रहा है. ब्रांड को उनके साथ साइकोलॉजिकल कनेक्ट होने की जरूरत है. सोशल बॉन्डिंग ऑफ ब्रांड्स होने की जरूरत है. शॉर्ट टर्म एक्वेंटेंस नहीं, सस्टेनेबल लॉयल्टी की जरूरत है. पहले ब्रांडिंग था बोलना, आप बोल देते थे एड में या पीआर में, कम्युनिकेट करते थे. अब कम्युनिकेशन केवल नहीं, कॉन्वर्सेशन चाहिए. लोग आपसे वापस फोन करें, लोग आपसे बात करें. पहले शुरू दिन में आपने ब्रांड वाले को डांट दिया, लेकिन आगे फिर वो ब्रांड वाले का क्या कहते हैं उसको, फिर आप उसको आगे बढ़ाते हैं. तो ऐसा बहुत समय हुआ है कि इन द सोशल मीडिया someone who is not happy customer has scolded the brand, but the brand has come back with the explanation and all, have engaged with the customer, and later on it became a good conversation. So conversation माने by क्या कहते हैं इंटरैक्टिव, और कम्युनिकेशन है वन एक तरफा कम्युनिकेशन का जमाना घट रहा है. पोस्ट पैंडेमिक जमाने में, वेब लेड मीडिया के जमाने में कन्वर्सेशन बढ़ रहा है. एनहांस डिजिटल हैबिट, लोगों का एजुकेशन में डिजिटल आ गया, हेल्थ में आ गया. कानून व्यवस्था के संदर्भ में भी लोग जब अपने सलाहकार से बात करते हैं, अब डिजिटल आ गया. एंटरटेनमेंट तो वेब एंटरटेनमेंट आ ही गया है. सो दीज आर द न्यू फैक्टर्स which will influence advertising and branding in the new normal. आगे हम पीआर में जाने के पहले आपको पूछेंगे, ये न्यू नॉर्मल में एडवर्टाइजिंग में आने के लिए क्या आपको सीखना है. पहले तो ये जो था क्रिएटिव बनना, डिजाइन बनाना, ग्राफिक्स बनाना, स्लोगन लिखना, ये सारे रहेंगे. लेकिन पहले अखबार को सोच के बनाया जाता था, प्रिंट को सोच के. अप टू 2000 साल तक अखबार का बोलबाला ज्यादा था, लेकिन 2000 से 2018-19 तक टेलीविजन का बोल बढ़ गया है. People used to the copy according to the, but now people will first think of the digital. इसको मोबाइल में मिलने वाला है लोगों को, इसको एड डिजिटली देखने वाला है, उसके बाद क्या मैं करूंगा वो प्रिंट और टेलीविजन में आएगा. This is the big challenge or big change that has happened. This is the big change that has happened. Public relation. पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, आप सामने 30 जर्नलिस्ट को लाते थे, घुमा इधर उधर से, मतलब बात करके, उनको मेल करके, उनको प्रेस रिलीज करके, फोन करके लाते थे. अब ई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है. हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी से एक ई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. एक मुद्दे पे नॉर्मली 20-25 जर्नलिस्ट आते फिजिकली. इस बार 82 जर्नलिस्ट आए, 82 4 कैसे आए? सब अपने घर से आ रहे थे. दे वर जॉइनिंग थ्रू अ लिंक, जूम लिंक. So it was easy for them. So they joined from there. Digital reputation. Digital reputation is how are you known online media, in online. So how well, मैंने आपके Facebook में कितने likes हैं और कितने आपके followers हैं, आपके किसमें क्या कहते हैं इसको, Insta में कितने followers हैं, LinkedIn में कितने followers हैं, ये होगा आपका एक पॉइंट है रेपुटेशन का. दूसरा, आप जब भी कोई बात हो तो लोगों का क्या है रिएक्शन देगा, बुरा दोनों ही, क्या अच्छा डोमिनेट कर. सो डिजिटल रेपुटेशन इज अनदर पॉइंट. ऑनलाइन डॉसियर एंड क्लाउड सोर्सेस, यानी बहुत सारी चीज आप क्लाउड में, बहुत सारे फैक्टर्स. सो ऑनलाइन डॉसियर बनाना, किसी की पूरी हिस्ट्री अपने कंपटीशन की या क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री को रिसर्च करके क्वेश्चनियर के बेसिस पे ऑनलाइन डॉसियर बनाना. डिजिटल पर्सोना, आप जो समझते हो अपने बारे में उसको पर्सनालिटी बोलते हैं. लोग जो समझते हैं आपके बारे में उसको पर्सोना बोलते हैं. सो देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल पर्सोना. हाउ डू पीपल जज यू. हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनको हमने जिंदगी में मिला ही नहीं, केवल फेसबुक में और इंस्टा में और लिंक्डइन में बात हुई है. देयर आर मेनी पीपल. पिछले 10 महीने में मैंने 224 वेबिनार में एड्रेस किया है. 224 वेबिनार में अगर एक एवरेज में 100-150 भी लोग होते हैं तो हजारों लोग इसमें आए, लेकिन इनमें से अधिकतर लोगों को मैंने फेस टू फेस कभी मिला ही नहीं. दिस इज द न्यू थिंग दैट्स हैपनिंग.
digital persona of the brand or the leader of the company, CEO or whatever. Webinar speaking slot, बड़े बड़े वेबिनार जहां पे large number of people आ रहे हैं, क्या आपको वहां पे इनवाइट किया जाता है? This is another PR point. Research document and policy paper. चूंकि सब कुछ ऑनलाइन धीरे धीरे हो रहा है, पॉलिसी में परिवर्तन बहुत आ रहे हैं. एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस, every policy is going through a change, and for this change पॉलिसी पेपर्स बनाने की जरूरत है. वो पीआर एजेंसीज काफी काम करते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हैं. सो दीज आर द न्यू ट्रेंड्स. क्या आप सोशल मीडिया में पीआर कर सकते हो, न्यू मीडिया पब्लिक रिलेशन कर सकते हो? क्या आप एक स्टोरी बना के उसको वायरल बना सकते हो? क्या आप प्रेस रिलीज लिख सकते हो अलग से टीवी के लिए और अलग से ऑनलाइन के लिए, अलग से प्रिंट के लिए? ये सारे एबिलिटीज आपको नौकरी देंगी आगे. प्रॉब्लम मैं जो बार बार कह रहा हूं, डिग्री के कारण आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी स्किल्स के कारण. डिग्री कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम, बट वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, वो उससे केवल, और वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, उससे आपको जॉब नहीं होगा. ग्रेजुएशन के बाद उसके अलावा आपके पास पोर्टफोलियो क्या है, आपने प्रोड्यूस क्या किया है, आप क्या दिखा सकते हो एज प्रोडक्ट्स, आपने ऑनलाइन में इंटर्नशिप किया या नहीं किया है, किसके साथ किया है, इंटर्नशिप में काम क्या किया है. These will determine your jobs of the future. Please also understand there is another form of communication and that's called events. Events. ये ऑनलाइन पीआर, ये कोविड टाइम्स का एग्जांपल है जो आप बाद में ऑनलाइन में लिंक लगाकर देख सकते हो. पीआर एक नंबर से देखो, सारे पीआर इवेंट्स, सारे इवेंट्स धीरे धीरे ई इवेंट्स हो रहे हैं, डिजिटल इवेंट्स हो रहे हैं. आगे फिजिकल भी होंगे, होने भी लगा है, लेकिन फिजिकल छोटा होगा, डिजिटली उसको एम्पलीफाई किया जाएगा. यानी सामने 500 होगा तो डिजिटली 5000 लोग देख रहे होंगे. सो आप क्लाइंट को 5500 ही बोलोगे क्योंकि कुछ डिजिटल में, और वो प्रूफ है, आप हिसाब कर सकते हो. अखबार या न्यूज टेलीविजन की तरह झूठ नहीं बोलने की जरूरत है. दे स्पीक देयर फिगर्स वेरी फॉल्स बिकॉज नोबडी कैन क्रॉस चेक, लेकिन यू कैन नॉट डू दैट इन प्रिंट, इन टेलीविजन, इन वेब गूगल एनालिटिक्स एंड अदर्स विल कैच इट. सो नए इवेंट्स हो रहे हैं अभी, जैसा म्यूजिक कॉन्सर्ट भी ऑनलाइन हो रहा है, लिटरेचर फेस्ट भी, जयपुर लिटरेचर फेस्ट अभी सामने आ रही है, वो भी ऑनलाइन में है. फिकी फिल्म्स हो चुका है ऑनलाइन, बट आगे ऑफलाइन भी होंगे. ऑफलाइन को ऑनलाइन में बड़ा किया जाएगा या एम्पलीफाई किया जाएगा. सीपीएस डॉक्स के बारे में मैंने बताया, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल है. ऑनलाइन हुआ, 30% ज्यादा ऑडियंस था, 28% ज्यादा रेवेन्यू था. यानी इट हैज बिकम मच बेटर एंड लार्जर गोइंग ऑनलाइन. कांस एंड ऑस्कर फेस्ट भी ऑनलाइन गया है. अब अगले साल शायद ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन हो सकता है, चाहे सीपीएस डॉक्स हो या कांस हो. लेकिन इस बार लोगों को मालूम पड़ गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन को ब्लेंड करने का या मिक्स करने का. सामने प्रोग्राम होगा, वही प्रोग्राम को आप जूम में, फेसबुक में या यूट्यूब में कहीं या किसी में वेबिनार जैम में कहीं भी ना कहीं देखेंगे, ऑनलाइन में आप देखेंगे. सो कांस एंड ऑस्कर फेस्ट डिजिटल गया है, मैंने तो बताइए. स्पोर्ट्स भी इंटरेस्टिंग है, खेल ऑफलाइन हो रहा है, जैसा बुंडेसलीगा जर्मन फुटबॉल का है, आईपीएल अभी अभी हुआ है. खेल ऑफलाइन हो रहा है, लेकिन ऑडियंस नहीं के बराबर है, कहीं कहीं ऑडियंस अलाउड भी नहीं है, और अगर है भी तो बहुत सारा प्रिकॉशन के साथ है. सो दिस इज अ न्यू थिंग दैट्स हैपनिंग. वेबिनार विद एंट्री फी शुरू हुआ है. चलो आपको तो बहुत अच्छा है कि आपको सीरीज ऑफ वेबिनार फ्री मिल रहे हैं, आप बिना एंट्री फी का अटेंड कर रहे हो. लेकिन बहुत सारे कंपनीज हैं जिन्होंने हाई क्वालिटी वेबिनार्स में जाना, अटेंड करना कंपलसरी किया, और वहां पे फी भी, जैसा बिजनेस वर्ल्ड फी लगाते हैं, स्पॉन्सर्स भी मिलता है उनको काफी हद तक. और ई स्पोर्ट्स एक और चीज डेवलप किया है जिसमें आपको फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा. तो यानी इवेंट्स भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ई इवेंट्स और ब्लेंडेड इवेंट्स होंगे. बार बार जो समझना है, हर मीडिया में डिजिटल और ब्लेंडेड, मैंने ब्लेंडेड को कन्वर्जेंस भी बोला है, डिजिटल या ब्लेंडेड यही होने वाला है आगे को, ये समझना बहुत जरूरी है. तो इवेंट्स के दुनिया में आने के लिए आपको डिजिटली इवेंट करना सीखना है, आपको फिजिकली भी करना सीखना है, और उसको कैसे एम्पलीफाई या बड़ा बनाया जाए डिजिटली वो भी जानना है. पहले इतना जरूरी नहीं था, सोशल मीडिया में थोड़ा अनाउंस कर दिया तो काफी था, फेसबुक पे. अब लेकिन पूरा का पूरा प्रोग्राम ही लाइव ऑनलाइन जा रहा है, और केवल फेसबुक ऑनलाइन नहीं, कई अन्य तरीके से सिक्योर कनेक्शन भी है, कंपनीज के अपने कनेक्शंस भी है लोगों के साथ. सो देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इवेंट्स.
मीडिया बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। पहले का मॉडल था एडवर्टाइजमेंट ड्रिवन, आपको ऐड मिलेगा तो आपको कमाई है, नहीं तो नहीं है। अब लेकिन दोनों तरफ से चेंज हो रहा है, खर्चा भी घट रहा है और कमाई के जरिए बढ़ रहा है। खर्चा कैसे घट रहा है? आपको हर ऑपरेशन, पहले टेलीविजन में एक इंटरव्यू लेने के लिए कैमरा लेकर उनके ऑफिस जाना पड़ता था। अब व्यक्ति जिसका आप इंटरव्यू चाहते हो वो ऑनलाइन में, जूम में या स्काइप में ज्वाइन कर सकता है, और स्काइप में आप कनेक्ट कर सकते हो अपने टेलीविजन चैनल से। स्टूडियो में बैठ के एंकर उससे पूछ सकता है एंड दैट पर्सन कैन आंसर थ्रू स्काइप। इट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट हेवीली। न्यूज़पेपर अपने एसेंशियल न्यूज को छोड़ के बाकी सब न्यूज को ऑनलाइन में दे रहा है। अगर पहले 48 पेज 64 पेज होता था टाइम्स ऑफ इंडिया, अब 24 पेज होने लगा, 18 पेज होने लगा या 20 पेज होने लगा, और बाकी जितने भी कंटेंट उनके बनते हैं वो कंटेंट को ऑनलाइन timesofindia.com में दे रहा है। देखो ndtv.com में जितने न्यूज है और एनडीटीवी पोर्टल में उससे ज्यादा न्यूज, उससे कम है, सॉरी, एनडीटीवी पोर्टल में .com में ज्यादा न्यूज है, एनडीटीवी टीवी में कम है। और ये सब चैनल के लिए सच है, यानी कॉस्ट आदमी लोअर कर रहा है। टर्न डिजिटल एंड क्रिएट यूनिक वैल्यू। डिजिटल में सबसे बड़ी बात है आपका यूनिक वैल्यू होना चाहिए। आप एनवायरनमेंट पे एक पोर्टल बनाओगे तो नहीं होने वाला है, और भी स्पेसिफिक होना है। स्पेसिफिक जितना हो पाओगे, कम्युनिटी बिल्ड करना है। मतलब आपका वो जो पोर्टल है वो जिन बातों को उठाता है, जिन मुद्दों को उठाता है, उस पर कितने लोग विश्वास करते हैं, जुड़ते हैं, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी। सो ऑनलाइन या वर्चुअल कम्युनिटी बनाने की जरूरत है अगर आपको डिजिटल में पैसे कमाना है। केवल चीजों को ऑनलाइन में डालेंगे तो पैसे नहीं कमा सकते अनलेस यू क्रिएट ए कम्युनिटी। हम एक कोशिश कर रहे हैं एडुटेनमेंट नाम का एक कम्युनिटी बनाने के लिए, edutainment.in, जिसमें एडुकेशन माने एंटरटेनमेंट, मीडिया, डिजाइन, आर्ट एंड कल्चर, इनके सारे एडुकेशन और इनके सारे मुद्दे उसमें रहेंगे, और उसको कम्युनिटी बना रहे, 10,000 लोगों की कम्युनिटी बना रहे। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टर्न डिजिटल, क्रिएट यूनिक वैल्यू टू कमांड अ प्राइस, तो ही आपको ऐड मिलेंगे या उस पर इन्वेस्ट करेगा कोई। सराउंड द स्टेक होल्डर्स विथ मल्टीपल टच पॉइंट। एक होता है प्रिंट, टीवी, वेबसाइट, इवेंट, ये हुआ आपका हॉराइजॉन्टल, मिट्टी का हॉरिजॉन्टल, आपके इर्द गिर्द एक सर्कल, और एक सर के ऊपर सर्कल, वर्टिकल सर्कल में व्हाट्सएप है, विमियो है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, दिस आर सिग्नल, अब नया सिग्नल आया है, दीज आर योर अनदर 360 डिग्री, दोनों मिलाकर 720 डिग्री कम्युनिकेशन। अगर आपको टारगेट ऑडियंस को आपने 720 डिग्री कम्युनिकेशन से जुड़ लिया तो आप सफल। आउटसोर्सिंग ऑफ फंड्स, जो भी अभी नए बहुत सारे इसमें कॉर्पोरेट के हेल्प से बन रहा है, कंपनी के हेल्प से, वैसे बहुत कम बना रहे हैं लोग, स्क्रिप्ट बना रहे हैं, डायलॉग डेवलप कर रहे हैं, एक्चुअल शूट कम कर रहे हैं। बट क्राउड सोर्सिंग ऑफ फंड्स, फिल्म बनाने के लिए, पोर्टल चालू करने के लिए, फिजिकल इवेंट, फिजिकल प्लस डिजिटल, फिजिकल इवेंट देखने के लिए, वेब एंटरटेनमेंट के लिए, ये सब के लिए क्राउड सोर्सिंग ऑफ फंड हो रहा है। हैव अ बेबी ऑफ इंडिपेंडेंट टैलेंट टू वर्क विद, एंड डोंट फाइंड योर। अब जो हो रहा है ना, नौकरियां लोग कम कर रहे हैं, एक साथ में 4 जगह को सर्व कर रहे हैं। जैसा कोई ग्राफिक्स या डिजाइनर है, वो एक कंपनी में 25-30 हजार की नौकरी नहीं करके वो 3 कंपनी में 15,000 का सर्व दे रहा है। एक कंपनी कर रही है, चूंकि वो फ्रॉम होम है, ज्यादातर हफ्ते में एक बार मीट करना है नॉर्मली, सो पीपल आर रेडी टू सपोर्ट दैट ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी में आप एक साथ में 2-3 कंपनी में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी तो मैंने अभी ये इसमें खबर, हमारा एक फ्रेंड है हंगरी में, एक प्रोफेसर है, उनका जो मैंने सुना है, वो एक साथ में 3 यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल पेपर पढ़ाते हैं जिसमें वही एक्सपर्ट है, उसमें वही सबसे एक्सपर्ट है उस विषय में, उस विषय को 3 विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। तो मैंने बोला आप नौकरी कहाँ करते हो? बोला तीनों में करती हूँ। तो बोले कैसे? बोला आई स्पेंड 2 days ऑफ द वीक इन ईच कैंपस, दैट कोर्स ऑन दोज 2 days, जितना हर हफ्ते करना है, और आई गेट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द सैलरी फ्रॉम ईच। तो 120% हो गया, यानी नॉर्मल इनकम से बड़ा हो गया। आप बोलोगे 2 लोगों की नौकरी चली गई, वो उनके देश में लोगों की कमी है इसलिए संभव है, लेकिन हमारे देश में एकेडमिक जॉब ना हो, लेकिन म्यूजिक का, वकील का, डॉक्टर का, एक्टिंग का, डायरेक्शन का, ये सारे काम अब ऑलरेडी कंटेंट डेवलपर का
साउंड रिकॉर्ड इसका, ये सारे काम नौकरी में नहीं है, ये सारे काम गिग इकोनॉमी, यानी एक आदमी चार आदमी के साथ काम कर सकता है, गिग हो गया। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को गिग बोला जाता है, प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब। आपको साइकोलॉजिकली तैयार रहना है प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब के लिए। बाय द वे, आपको मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ना है, कैसे मीडिया पैसा बनाती है वो समझना भी जरूरी है। सो कन्वर्जेंस इज द वे फॉरवर्ड, डिजिटल एट द टॉप, कंज्यूमर्स मस्ट पे। जो आपके उपभोक्ता है मीडिया के, उन्हें खर्चे करने चाहिए। और डिजिटल सब पर है, लेकिन यानी मीडिया में कुछ दिन तक रहेंगे। मीडिया एडुकेशन, आप राइट साइड से देखो, मीडिया कंटेंट जो आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, कंटेंट। मीडिया टेक्नोलॉजी जिसको आप व्यवहार करते हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या कैमरा हो या एडिटिंग मशीन हो, ये मीडिया टेक्नोलॉजीज हुआ। और मीडिया बिजनेस, कैसे आपका कंटेंट पैसे बनाएगा। ये तीनों चीज को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है बिफोर स्पेशलाइजिंग। साथ साथ तीन और माने ये हुआ तीन बेस, तो मीडिया कंटेंट, मीडिया टेक्नोलॉजी, मीडिया बिजनेस। उसी तरह तीन तरह के मीडिया है, मल्टीमीडिया जर्नलिज्म विद डिजिटल एंटरटेनमेंट और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो एड एंड पीआर है। तीनों का बेसिक जानकर तब जाके आप एक चीज पे स्पेशलाइज कीजिए। और इंटरेस्टिंग चीज है, आज के जमाने में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो भारत सरकार का स्वयं और नैपटेल हो या फिर विदेशों का कोर्सेरा हो, यूडेमी है, कई तरह की चीज। तो ऑनलाइन कोर्सेज करना जरूरी है और उसको सीरियसली करना जरूरी है। आप कर रहे हो इस वक्त, जो लोग सुन रहे हो वो ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ड्यूटी है इसको कंप्लीट करना। जानना नहीं जानना आपका प्रॉब्लम है, जानोगे तो अच्छी बात है, नहीं जानोगे तो कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। सो देयरफॉर ये जो एटीट्यूड आ गया है एजुकेशन में कि ऑनलाइन लर्नर के ऊपर डिपेंडेंट है, लर्नर की अपनी वॉलंटरी लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट है, दूध का दूध पानी होना इजी है। एक तो बच्चों को इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, दैट इज अनदर, पास है भी, उसमें पानी का पानी हो जाएगा। कितने लोग रियली वांट मीडिया प्रोफेशनल और फोकस्ड ऑन दैट, और कितने लोग भीड़ के लोग हैं बस। तो दिस इज पॉसिबल नाउ। तो ऑनलाइन कोर्स करना, एक मिनट, ऑनलाइन कोर्स करना, डाइवर्स वेबिनार करना जैसा कि आप करते हो बहुत अच्छी तरह से, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी करते हो। पर्सनल गैजेट, आपका अपना स्मार्टफोन, पर्सनल गैजेट, साउंड रिकॉर्डिंग ये होना चाहिए। एंड डिजिटल स्किल्स, केवल एंगेजमेंट नहीं, प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। प्लेस डेमोन्स्ट्रेट हो रही है टीचर्स के, ये कम, चलो आपने 1 घंटा बोलने मुझे मजबूरी है दूंगा, लेकिन अगर अपने इंस्टीट्यूट का देख, हम लोग क्लास से भी ज्यादा काम पे जोर दे रहे हैं। क्लास करना है, बेसिक तो जानना ही है, कॉन्सेप्ट तो जानना ही है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करना, ज्यादा एक्टिविटी करना, चाहे वो शॉर्ट फिल्म मोबाइल से बनाए, चाहे वो ऑडियो पॉडकास्ट बनाए, चाहे रिसर्च करके कोई आर्टिकल लिखे, चाहे वो फिक्शन लिखे, चाहे वो एड कैंपेन डिजाइन करे, कुछ भी हो, डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल करना जरूरी है। आप मेंटर बनिए, टीचर नहीं। टीचर एक ऊपर लेवल से बोलते हैं, क्लासरूम में बोलते हैं, फिक्स सिलेबस में बोलते हैं, बट एक मेंटर अपना जो भी जानते हैं वो भी बताते हैं और दुनिया के और जगहों से लिंक, पीडीएफ ये सब के माध्यम में भी शेयर करते हैं। और मेंटर क्लास के अंदर और बाहर दोनों में सपोर्ट करते हैं। मेंटर नौकरी में या समाज में पहचान बनाने में भी सपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन में भी सपोर्ट करते हैं। सो मेंटर मोर, आउटकम अच्छा रहेगा। रीड एनालिसिस के लिए और एप्लीकेशन के लिए, पोर्टफोलियो और लाइव प्रोजेक्ट जरूरी है। अब ओपन बुक एग्जाम है, मैं आपको क्वेश्चन बोल सकता हूँ, मेरे मोबाइल में ही है, ये क्वेश्चन आप गूगल नहीं कर सकते, उसका जवाब घर में बैठ के भी लिख सकते हो। 1 घंटा टाइम दिया, अंदर लिखकर आपको उसको अपलोड करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बाइक रिलीज हो रहा है, बाइक बजाज कंपनी की तरफ से है, उसका एक प्रॉपर लोगो दीजिए और नए बाइक का, और उसका एक अलग नाम दीजिए, मैंने बजाज चेतक जैसा होता है, जैसे बजाज क्या होगा वो बताइए। बाइक की खूबी ये है कि ये तो रास्ते पे तो चल ही सकता है, ये जंगल या वो जो रेगिस्तान होता है उसमें भी चल सकता है। उसमें ऐसे कुछ सिस्टम है जिसमें रेगिस्तान में भी जल्दी से चल सकता है, और उसमें चक्का को अंदर करके बाकी कुछ निकाल के, वो प्लेटफॉर्म निकाल कर वो बोट की तरह पानी में भी, नदी में भी चल सकता है। जैसा कि आपने जेम्स बॉन्ड फिल्म में देखा होगा, इंडिया का भी रेस
2 या 3 में देखा होगा। सो दिस, ऐसा बाइक के लिए आप क्या ब्रांड नेम दोगे, क्या उसका स्लोगन होगा, और उसको 2 करोड़ खर्चा करके अगर आपके शहर में लॉन्च करें तो उसका प्लान होगा लॉन्च। ये क्वेश्चन है, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप दूसरा किसी बाइक का देख सकते हो, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। अगर आप सब्जेक्ट जानते हो, पावर ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी नहीं जानते हो यूज करना, तो आप इसको नहीं बना सकते। तो दिस इज द पॉइंट दैट इज कमिंग, कि अभी आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड टेस्टिंग करना जरूरी है, मेमोरी ओरिएंटेड नहीं। कितना आपने याद रखा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मोबाइल में गूगल आपको जितना याद रखोगे उसके 100,000 करोड़ गुना ज्यादा बोल देगा। तो इसलिए याद बहुत जरूरी नहीं है। छोटी छोटी बात रखना है वो अलग बात है, पर बहुत सारी चीज याद रखना नहीं है। लेकिन जो चीज जानते हो उसको अंदर से जानना जरूरी है, जिससे कि आपको क्वेश्चन देने से वो अप्लाई कर सकते हो। और पोर्टफोलियो बनाइए, फिल्में बनाइए, अखबारों या पोर्टल में आपका आर्टिकल लिखिए जिसका लिंक रखिए, आप कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए जिसका फोटोग्राफ रखिए। सो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। साथ में इंटर्नशिप कीजिए। हमने अभी बच्चों को कंपलसरी किया, स्टूडेंट्स को, कि आपके सेमेस्टर चलते चलते साथ में आपको एक इंटर्नशिप करना होगा, चलते चलते, क्योंकि ऑनलाइन में करना है, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। होगा तो सैटरडे जाइए, वैसे अभी तो पूरा बंदी है, मतलब क्लासेस आप कभी भी जा सकते हैं, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ऑफलाइन बंद है। सो इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। मास्टर क्लास, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, एक तरह का मास्टर क्लास है। आप इंडस्ट्री के लोगों को लाकर भी मास्टर क्लास आप कर ही रहे हैं। वो लाइव प्रोजेक्ट मतलब कोई क्लाइंट होना चाहिए, चाहे वो एनजीओ हो या कंपनी हो, कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो लंबा टाइम चले, रियल लाइफ केस, और आवश्यकता पड़े तो ट्रैवलिंग। कन्वर्जेंस, यानी पूरी चीज को पहले समझिए मीडिया का, फिर एक धारा पे स्पेशलाइज कीजिए, चाहे आप जर्नलिज्म या एंटरटेनमेंट या ब्रांड कॉम में करें, या रेडियो, टीवी, इंटरनेट, किसी में करें। सो बट वेब बेस्ड होना चाहिए। स्टैंड अलोन नॉन डिजिटल मीडिया का कोई भविष्य नहीं है। दैट्स द नेक्स्ट। ओके, तो एंड वी कंक्लूड विद दिस स्लाइड एंड देन विल टेक क्वेश्चंस। 720 डिग्री सराउंड कम्युनिकेशन, यानी केवल 360 डिग्री नहीं, सोशल मीडिया इंक्लूड करके 720 डिग्री। यूजर जनरेटेड कंटेंट, एक आवाज आ रही है, जबरदस्त आवाज आ रही है। यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी जो आपका मीडिया यूज करेगा उनका बनाया हुआ कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म फोकस, यानी केवल एजेंडा क्या बताएंगे वो एजेंडा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म फोकस। वेब का पोर्टल या रेडियो या टीवी, प्लेटफॉर्म फोकस होना चाहिए। गेट कीपिंग, चीजें रोकने के लिए नहीं, गेट ओपनिंग रोल होना चाहिए। तो वेब में क्या होता है, कितना भी आप न्यूज डाल सकते हो, जितना आपको मिले, बस थोड़ा सा वेरीफाई करो, करेक्ट करो और डाल दो। गेट ओपनिंग। ब्रांड एडवर्टाइजिंग में ब्रांड प्रॉमिस, ब्रांड वैल्यू एंड स्टेक होल्डर फोकस। स्टेक होल्डर होता है आपका क्लाइंट, कस्टमर और आपका एम्प्लॉय। तो ब्रांड प्रॉमिस, ब्रांड वैल्यू एंड स्टेक होल्डर। गिग इकोनॉमी में आपका एम्प्लॉय घट जाएंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो और भी ज्यादा उन पे ध्यान देना जरूरी है। क्राउड सोर्सिंग, नए इनकम, कंज्यूमर्स से पेमेंट, ये दोनों बढ़ना चाहिए। केवल एडवर्टाइजमेंट पे मीडिया नहीं चल सकता। लो कॉस्ट हाई वैल्यू यूएसपी, यानी आपको खर्चा घटाना है लेकिन वैल्यू बढ़ाना है। और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, हर प्रोग्राम का, हर मीडिया का एक अपना यूएसपी होना चाहिए। आगे चल के डिजिटल, फिजिकल एंड कन्वर्जेंस, यानी पहले वेब, फिर फिजिकल प्लस डिजिटल माने ब्लेंडेड, और फिर सारे मिलाकर कन्वर्जेंस। ये चारों चीज आपको तीनों चीज जानना चाहिए। कन्वर्जेंस माने जिसमें आप वेब, प्रिंट, टीवी, रेडियो एंड ऑन ग्राउंड, सब कुछ आप जानते हो, आप समझ सकते हो। अभी जो आगे जमाना आ रहा है नौकरियों का, ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, किसी को अगर कभी किसी सबक कोई भी बात पूछनी हो मैं जवाब देता हूँ, चाहे व्हाट्सएप हो या ईमेल हो, जवाब देता हूँ। अच्छा, कमिंग बैक, अगर आपको आगे के जॉब्स देखने हैं तो मैंने तो एक बहुत बताया कि जितना ज्यादा आप वेब यूज करोगे, डिजिटल यूज करोगे, उतना आपके लिए ये सुविधा होगा। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात जो आपको समझना है, जैसा किसी कंपनी में एक अकाउंट्स ऑफिसर होता है, हर कंपनी में 50 लाख की कंपनी हो, एनजीओ हो, छोटा सा स्कूल हो, या बड़ी सी कंपनी 2000 करोड़ की हो, सब में ही एक अकाउंट्स ऑफिसर होता है। अब देखो आगे चल के सब में एक लॉ ऑफिसर भी आ रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी, स्कूल हो या कंपनी हो, एनजीओ हो,
एक लॉ ऑफिसर, कानून का ऑफिसर भी आ रहा है, और तीसरा जो अभी आ रहा है और जबरदस्त तरीके आएगा वो है कम्युनिकेशन ऑफिसर। कम्युनिकेशन ऑफिसर जो सोशल मीडिया यूज जानता है, जो जो प्रेस रिलीज लिख सकता है, जो उस शहर के सारे अखबारों के साथ पहचान है, जो फोटोग्राफी कर सकता है, जो छोटी फिल्म बना सकता है। सो ये जो कम्युनिकेशन ऑफिसर है, दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आप कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको एनडीटीवी में और टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब मिलेगा, इट विल नॉट हैपन, बिकॉज बिग न्यूज़पेपर्स आर नॉट हायरिंग। आप देखना आपके शहर में भी गुजरात समाचार हायर नहीं कर रहा होगा, दिव्य भास्कर हायर नहीं कर रहा होगा, लेकिन छोटे छोटे पोर्टल हायर कर रहे हैं। और आपका कम्युनिकेशन ऑफिसर वाला पॉइंट भी बहुत जबरदस्त है, वो भी ध्यान रखना है। मैं इतना तक रखता हूँ, क्वेश्चंस लेते हैं आप लोगों से। हम लोगों ने अभी 1 घंटा 10 मिनट 7 मिनट बात की, अगला 25 मिनट 30 मिनट हम आपसे क्वेश्चन आंसर लेने को तैयार है, या कोई प्रोफेसर लोग भी कोई मुद्दा उठाना चाहे तो जरूर उठाए। ओवर टू डीन साहब। डीन साहब को वापस। Thank you very much, sir, for your wonderful talk, your master talk, and this is a fabulous session, sir. And we love to see you again and again, and we love to hear you again and again. But sir, we have a lot of the questions from our student side and the participant side and from media professional side. In this connections, that sir, we have our masters in mass communication student Donna Bhatt. And so the very simple question in context of the Gujarat. See, I have the question that please explain the scope of the entertainment PR in Gujarat. She want to know what is the scope of the entertainment PR in Gujarat. Entertainment PR. Okay, I will tell that. Entertainment क्या चीज कवर करते हैं? Let's look at that. वेब का एंटरटेनमेंट है, वेब सीरीजेस, टेलीविजन चैनल, सिनेमा, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, वो भी एक फैक्टर है, वो भी एक एंटरटेनमेंट है, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। और सिनेमा तो मैंने कहा, टेलीविजन चैनल के बारे में, उनके प्रोग्राम के बारे में भी। गुजराती एंटरटेनमेंट पे लिखने के स्कोप होंगे, एटलीस्ट जो पोर्टल गुजरात के हैं। जैसा मैं जानता हूँ, मेरा मित्र केतन भाई हैं, केतन त्रिवेदी वहाँ पे एडिटर हैं, डिजिटल एडिटर। मैं अभी 1 मिनट में उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलता हूँ, केतन त्रिवेदी, चित्रलेखा डिजिटल के एडिटर हैं। सो उनके वहां भी एंटरटेनमेंट का एक राइटर है जो रेगुलर ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन में एंटरटेन के, चाहे वो हिंदी सिनेमा या गुजराती सिनेमा हो, ड्रामा हो, थिएटर हो, ये सब पे लिखते हैं। तो देयर इज सम स्कोप। अगर आप बोलोगे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन अगर आपका डेप्थ है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट तरीके 4-5 चीज छपवा लो, आपका अपना ब्लॉग बना लो, एंटरटेनमेंट लेकर ब्लॉग बना लो, आपका अपना सोशल मीडिया पावरफुल करो, और ये सब ले जाकर अगर आप सिलेक्ट करो, जैसा मैंने चित्रलेखा नाम बोला, ऐसे गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, अंग्रेजी के भी हो गए, वहां के जो भी मीडिया, आप सिलेक्ट करो, उनके पास जाके बोलो दिस इज माई वर्क, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 1 year 2 year। बट एक चीज जान के रखिए, 2 से 3 लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है। अगर आप बोलोगे गुजरात के लोगों को, मीडिया को, मैं केवल अंग्रेजी जानती हूँ एंड आई कांट राइट इन गुजराती, नहीं जमेगा। क्योंकि द रियलिटी इज Indian language media is 93% of the media. English is only 7% of the media. ये जान के रखिए, 93% है इंडियन लैंग्वेज मीडिया। हाँ, उसमें हिंदी भी है, गुजराती भी है, मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु सब है, लेकिन you have to understand, you have to be a minimum bilingual, ideally trilingual। यानी आप हिंदी गुजराती दोनों में बहुत एक्सपर्ट हो, या अंग्रेजी गुजराती में एक्सपर्ट हो, वो अच्छा है। अगर सको तो 3 लैंग्वेज, माने तीनों लैंग्वेज में बोलना लिखना आना चाहिए। ये अगर हो सकता है तो आपका वेब एंटरटेनमेंट मीडिया पे भी आपका करियर है। और अगर बॉम्बे में काम कर सकते हो तो और बहुत ज्यादा करियर है इसमें। अच्छा, और एक चीज हो गया, चूंकि ऑनलाइन हो गया, आप गुजरात में बैठ के दुनिया के कहीं के भी मीडिया में लिख सकते हो या बोल सकते हो। सो यू कैन क्रिएट एक सुभाष झा बोल के एक जन है, आपका नाम चेक करना, वो हिंदी फिल्म के एंटरटेनमेंट के बहुत अच्छे राइटर है। नाउ दिस मैन हैज नेवर वर्कड इन एनी मीडियम, यू नो दैट। कहीं नौकरी नहीं की, जिंदगी भर उन्होंने लिखकर और छोटी फिल्में, माने वो ब्लॉग वॉग बनाकर ही गए, अभी भी लिख रहे हैं, और उन्हें काफी अपने एक फुल टाइम एम्प्लॉय से ज्यादा इनकम किए, क्योंकि उनका वो एस्टेब्लिश हो गया था। बट करियर के शुरुआत में कहीं कहीं नौकरी करना अच्छा रहता है,
वो मैं सजेस्ट करूंगा। दूसरा क्वेश्चन पूछिए। Sir, another question from Mr. Shyam Swaroop, and he has that the convergence is the media leading to job crunch, is the one person is the catering to more types of the media. ये फैक्ट है कि एक साथ में मल्टी स्किल्ड होने के कारण, कन्वर्जेंट स्किल्ड होने के कारण एक जन 2-3 जन का काम कर रहा है। मुझे मालूम है, व्हेन आई वाज डूइंग टेलीविजन जर्नलिज्म एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय करियर, आई एम टॉकिंग ऑफ जी और जी के बाद टीवीआई चैनल, दैट टाइम आई फाउंड, इवन मैं गुजरात में भी था, जब वो शंकर सिंह वाघेला जी चीफ मिनिस्टर थे, कुछ दिन केशुभाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त में गुजरात में था, और मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनने तब तक मैं सिम्बायोसिस में डीन बन चला गया तब, लेकिन पहले मैं था। एंड आई हैव सीन, मैं रिपोर्टर था, मेरा एक कैमरामैन था और एक साउंड रिकॉर्डिस्ट था। एक साउंड रिकॉर्डिस्ट भी था अलग, क्योंकि कैमरा और साउंड रिकॉर्डिंग मशीन अलग अलग होते थे, और मैं बूम मेरे हाथ में था। इतना प्रॉब्लमेटिक था 3 आदमी का टीम घूमना। अब तो लोग, हम गाड़ी में घूमते थे, कंपलसरी कार लेना पड़ता था, अब लोग बाइक में घूम रहे हैं, एक ही आदमी, उसी के कंधे कैमरा है, कैमरा छोटा हो गया है, और बूम माइक पकड़ने की जरूरत भी नहीं है बहुत समय, वो लोगों के लिए लोग पकड़ते हैं, अदरवाइज पावरफुल रिकॉर्डिंग मशीन हो गया है, और वही आदमी क्वेश्चन कर रहा है, वही आदमी कैमरा शूट कर रहा है, सेम पर्सन। इट हैज बिकम वन मैन थिंग। सो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो 2 आदमी की नौकरी गई। नाउ आप 2 आदमी की नौकरी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने इनको ही दुनिया दिया। 3 एक का था, अगर चैनल 10 हो जाए और एक एक आदमी को लगाए तो 10 नौकरियां हो गई। सो नाउ द चैनल्स आर इंक्रीजिंग, और चैनल इज नॉट टेलीविजन चैनल ओनली, it is YouTube channel also, it is local portal also, so there are many other forms that are coming. So yes, convergence के कारण apparently लोग घटेंगे, but आप रोक नहीं सकते ना। जब बैलगाड़ी बंद होकर कार आई है तो बैलगाड़ी चलाने वाले लोग बैठ गए। You can't stop the technology. आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपने को क्या कहते हैं इसको, अपने को एडजस्ट करना होगा। You have to negotiate technology and become an expert in that context. So you can't help it. So please be multi-skilled. आप अपनी नौकरी का सोचिए, multi-skill हुई है। अगर देश में 2 लाख कंपनी, एनजीओ और इंस्टीट्यूशन है करीबन, अगर हर 2 लाख में एक कम्युनिकेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है तो 2 लाख नए नौकरी बनते हैं, जिसमें अभी शायद सिर्फ 20,000 के होंगे, बाकी सब नए 1,80,000 नए हो जाएंगे। So it is possible to create new jobs. पहले होता था नेशनल टीवी, उसके बाद हुआ लोकल स्टेट टीवी, गुजरात टीवी, अब गुजरात में भी 15-20 टीवी आ गए, चैनल आ गए, न्यूज चैनल। और अगर अभी बड़ौदा में अलग से न्यूज चैनल है, सूरत में अलग से न्यूज चैनल है, यानी ये चीज थी नहीं पहले। समय के साथ साथ पोर्टल बनेंगे, रीजनल मीडिया बनेंगे, लोकल मीडिया बनेंगे, और कम्युनिकेशन ऑफिसर्स बनेंगे, तो नौकरियां आएंगी। लेकिन जो नौकरियां आएंगी वो पुराने मीडिया वाले कर नहीं पाएंगे, वो पुराने मीडिया वाले के पास वो स्किल नहीं है। आप जो नए मीडिया वाले, आप कर पाएंगे। दैट इज व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग। सर, अगला क्वेश्चन। Yes, sir. Another question from the participant side. The question is that what kind of the impact of the pandemic on the media entertainment in context of the legal perspective, like on contract, consumer issues, insurance, employment, and the workplace issues? Yes, ये ओवरऑल भारत में अभी वर्क प्लेस इश्यूज काफी बिगड़ रहा है, यह ओवरऑल ही बिगड़ रहा है। आपको मालूम है कि वर्कर्स के अधिकार काफी हद तक घट गए हैं। सो देयर इज ए चैलेंज देयर। आप सही बोल रहे हो, देयर इज ए मेजर चैलेंज देयर, बट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट ये चैलेंज होने के बावजूद भी हमें समझना है कि देयर इज ऑल्सो अ स्कोप ऑफ वर्क। एक्सपर्ट लोग नहीं मिल रहे हैं, हर चीज में कोई रियली वेल एक्सपर्ट लोग बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। सो अगर एक विषय पे आपका दखल है, यानी दखल माने समझो आप इकोलॉजी पे या इंश्योरेंस पे, लेबर लॉज पे आपका दखल है, तो आपको मीडिया में कॉल आएगा ही। लेकिन क्या एक मीडिया आपको पूरी तरह केवल लेबर लॉज या इंश्योरेंस लॉज के लिए अपॉइंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तब आपको कई सारे मीडिया में आपको अपना सर्विस या आपका जो स्किल सेट है वो देना पड़ेगा। गिग इकोनॉमी मैंने पहले ही बताया उसके बारे में। हाँ सर, अगला क्वेश्चन। Thank you, sir. Thank you very much. And the next question from the student side, the question is what kind of the impact on online media consumption during the pandemic? ऑनलाइन मीडिया कंजम्पशन काफी बढ़ा है। इनफैक्ट एज आई हैव सेड, ओटीटी में केवल नेटफ्लिक्स में 900% इंक्रीज हुआ है,
बाकी सारे ओटीटी मिलाकर 700% बढ़ा है। और न्यूज़पेपर तो आप जानते हो 1-2 महीने तक तो पूरी तरह बंद था, जो भी न्यूज़ वो टीवी और ऑनलाइन में ही था उस वक्त। सो लोगों का हैबिट चेंज हुआ है काफी हद तक। पहले जो डर था ना कि टीवी, एक मोबाइल में हम चीज को पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से, ये डर था, ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, वो डर निकल गया लोगों के दिमाग से। अब वो लोगों को समझ में आ गया कि मोबाइल से भी हम अपना मीडिया कर सकते हैं, मीडिया कंजम्पशन कर सकते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कोई है? Thank you, sir. Thank you very much, sir. And another question is that, sir. Sir, what kind of the impact on the film actors and actresses and on artists during the pandemic? Which kind of challenges they are facing? Still, they are not overcome, and what kind of the policies need to develop in that context? So again, the smoothly they can work. राइट, बात पॉलिसी की नहीं है अभी, बात ऑप्शन की है। हाँ, पॉलिसी इतना ही है कि 15 जन एक साथ शूट करेंगे या 25 जन करेंगे या 100 आदमी को करने देंगे। बॉम्बे में अभी भी 30 से 35 लोगों को एक साथ शूट करने दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। और उसमें भी हाथ में ग्लव्स और चेहरे पे वो लगाकर, क्या बोलते हैं, मास्क लगाकर। केवल जो एक्टर एक्ट्रेस है उनको मास्क की छूट दी हुई है, उसके पहले उनको पहले सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद अलाउ कर रहा है। तो ये चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा, जब तक ये मास स्केल में वैक्सीनेशन नहीं होगा ये चलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी, बाय द वे, आज मुझे भी, मतलब एक मेरा दोस्त है, वो एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन और एक पोर्टल का एक मालिक है, ब्रिटिश हेरल्ड, अंसफ अशरफ। 14 तारीख जनवरी के 14 तारीख उसका वैक्सीनेशन हुआ। फेसबुक में उसने फोटो भी डाला, और आज से 2 दिन पहले वो बीमार हुआ, पॉजिटिव हुआ, ह्यूज बुखार आया, गया, आज कल रात को उसका डेथ हो गया। एंड वो 40 साल का लड़का है, वैक्सीनेशन के बाद डेथ हुआ। तो हम जानते नहीं कि कहाँ जा रहा है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है कि ये मामला कहाँ जा रहा है। सो एज अ प्रैक्टिस प्रिकॉशन करना जरूरी है। तो अब लोगों ने ऑल्टरनेट करने लगा, सिंगर अपने घरों में ही स्टूडियो बनाने लगा, अपने घरों से ही गाना गा के रिकॉर्ड करके भेजने लगा। एंकर अपने घरों से ही एंकरिंग कर रहा है। इवन अब नया कॉन्सेप्ट आया, अलग अलग जगह से भी एक्टिंग करके एक साथ में पैच अप कर सकते हैं, एडिटिंग टेबल में पैच करके आप ला सकते हो। लेकिन बहुत कैरेक्टर्स नहीं हो सकता, 2-3 कैरेक्टर को कर सकते हो, छोटे कैरेक्टर। मैंने पहले ही बताया था कि हीरो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोरी इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंटेंस होगा, लोग कैरेक्टर्स कम होंगे, ये चलेगा इस तरह से। सो जो ये छोटे मोटे जो एक्टर आ गए थे ना, किसी को पकड़ के कैसे भी नाम के लिए वगैरह, ये सब की जॉब गई। Only good quality actors and good quality technicians will remain in the market. But tough time, it's a tough time. But OTT बन रहा है, OTT में कंटेंट बन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है। So there will be, एक तरफ में जब सिनेमा और टीवी में टफ टाइम चल रहा है, उसी तरह दूसरी तरफ में OTT का ग्रो हुआ है। लेकिन शूटिंग पे रेस्ट्रिक्शंस है, उसके लिए प्रॉब्लम है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। थोड़े दिन तक मुझे लगता है ये 6 महीना तक और भी ये प्रॉब्लम मिनिमम तो चलेगा ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। So next, the very interesting, and the question is that what is your opinion need to develop by the government to promote the media and entertainment industry as well as the tourism and other kind of the industry? Because in the various foreign country, the various kind of the policies developed, they give the $3,000, $1,500, $2,500 to the employee, and some kind of the allowances to the industry people. And they also give us some kind of the voucher to develop the tourism sector in the Luxembourg and etc. all these countries. So what is your opinion about that, sir? देखो, भारत में फॉर encouraging films and entertainment production in Indian good locations, all the state governments are giving some incentives. Assam has its incentive, Bengal has some incentives. There are some incentives are already there, but the tourism itself is on a low level now. एंड इंटरनेशनल टूरिज्म, चाहे वो काम के लिए हो, शूटिंग के लिए हो, जैसे ही हो, सिर्फ घूमने के लिए हो, इंटरनेशनल टूरिज्म अधिकतर देशों का फ्लाइट अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। सो मुझे नहीं लगता 2021 में बहुत ज्यादा टूरिज्म बेस्ड मीडिया प्रोडक्शन होगा। 2021 में नहीं हो पाएगा। अगर 21 के अंत तक जाके और 22 की शुरुआत में हो तो अच्छी बात है। बट हाउएवर आई टोटली एग्री दैट देयर शुड बी मोर इंसेंटिव गिवन फॉर पीपल टू शूट इन इंडिया that promotes India's tourism. That promotes India's tourism and that also helps get Indian people to get some jobs. अगर आपको याद है वो what was that film that वो टाइगर और एक आदमी का था ना, पाई लाइफ ऑफ पाई फिल्म में वो इंडियन स्टोरी था, शूटिंग भी इंडिया में ही हुआ है,
आसपास इंडिया के ही संदर्भ में हुआ है, लेकिन दुनिया भर में हो गया है। स्लम डॉग मिलियनेयर दुनिया भर में गया है, भारत के ऊपर स्टोरी थी लेकिन दुनिया भर में गई है। सो वो अच्छा है इस तरह के स्टोरीज बनना भारत में, और उसके लिए गवर्नमेंट की इंसेंटिव देना। और इसमें कारीगर टेक्नीशियन तो इंडियन के होते हैं, सिर्फ टॉप 4-5 जन बाहर से आते हैं, बाकी टेक्नीशियन तो हायर करते हैं, लाइन होता है, लाइन प्रोड्यूसर कर देता है सब व्यवस्था। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी एनकरेज दिस, बट इट विल टेक सम टाइम, ये साल तो गया। अगला प्रश्न। Sir, next question is what kind of the impact came on the media career and how better it can be in media after the pandemic and what need to do for that? मैंने पहले ही बताया, डिजिटल पे एक्सपर्टीज होना, पोर्टफोलियो बनाना, मोबाइल को यूज करके कंटेंट बनाना, घर में बैठ के कंटेंट बनाना सीखना, ऑनलाइन में इंटर्नशिप करना, दीज आर द फ्यू थिंग्स अलॉन्ग विद द क्लासेस, लेक्चर्स, बाकी जो आप चल रहा है उसके साथ ये सब करना बहुत जरूरी है। अगर ये सब आप कर सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकते हो, सो देयर इज स्कोप। अब इन मीडिया में नए स्किल्स जानने वाले लोग हैं ही नहीं, और पुराने लोगों की नौकरियां जा रही है, एक वैक्यूम बन रहा है, और वैक्यूम में बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू इंक्रीज योर स्किल सेट टू टेक एंड ग्रैब दैट सिचुएशन। एक जनरेशन बैठ रहा है मीडिया से और एक नया जनरेशन आ रहा है। ये नया जनरेशन के नए स्किल्स में, जिसमें मैं और रावत सर हम पुराने हो गए, तुम्हारा भविष्य है। वैसे रावत सर ऑनलाइन में बहुत काम करके आए, वेब दुनिया में काम करके आए। वेब दुनिया में जो उन्होंने काम किया वो एक्चुअल काम है, रियल काम है। webdunia.com आई थिंक उसका नाम है, जिसपे आपने बहुत दिनों तक काम किया है। तो वो काम हमने जब काम किया तो बहुत पुराना हो गया। टीवीआई चैनल में किया था, जी न्यूज में किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में किया था, ब्लिट्स में किया था। ब्लिट्स तो अभी है भी नहीं। सो एंड टाइम्स ऑफ इंडिया पहले से सर्कुलेशन घट गया है, टीवीआई चैनल भी नहीं है, जी है, लेकिन जी तो चलो बहुत कंट्रोवर्शियल चैनल हो चुका है। सो द पॉइंट इज, ये जो वेब दुनिया में जो चीजें हो रही हैं, इस तरह के काम में ही भविष्य है। आप अपने को तैयार कीजिए, यू हैव अ ग्रेट करियर। और ये चीज समझिए, कम्युनिकेशन ऑफिसर वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, वो सिर्फ फिल्म मेकर या जर्नलिस्ट या एडमैन नहीं है, लेकिन सब सारे विषयों का थोड़ा थोड़ा जानकारी चाहिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी चाहिए। और वहां पे यू बिकम अ मल्टीमीडिया प्रोफेशनल। दैट इज द थिंग दैट इज कमिंग अप। जैसे अकाउंट्स ऑफिसर होता है, टैक्स का भी जानता है, अकाउंट्स को भी जानता है। लॉ ऑफिसर होता है, वो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ सब जानता है। उसी तरह एक कम्युनिकेशन ऑफिसर होगा जो थोड़ा वो टीवी, रेडियो, प्रिंट और ऑनलाइन सब जानेगा, जर्नलिज्म, एंटरटेनमेंट एंड ब्रांड कॉम सब जानेगा। एक तरफ में वो सोशल मीडिया भी हैंडल करेगा, दूसरी तरफ में अपने सीईओ का स्पीच भी लिख के देगा। सो दिस इज द न्यू थिंग दैट इज कमिंग। ये आप सीखो, ये मल्टीमीडिया स्किल पे डिपेंड करता है, और इसमें लाखों जॉब्स बनेंगे सामने, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक कम्युनिकेशन ऑफिसर की जरूरत हो रही है। सोशल मीडिया में आना, ऑनलाइन में आना, सबकी जरूरत हो रही है। इसलिए प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you, sir. And another question is what kind of the impact on the advertisement volume during the COVID-19 on TV, radio, newspaper, and digital media, and advertisement volume decrease or increase in which medium specifically, and why it's happened that? A huge decrease has happened in advertising as a whole, because of lockdown, the companies were not earning much. So उनका जो मार्केटिंग बजट था, किसी ने 20% कर दिया, किसी ने 30% कर दिया, तो ह्यूज डिक्लाइन हैज हैपेंड। बट डिक्लाइन में डिजिटल का खर्चा बढ़ा है, प्रिंट का सबसे ज्यादा घटा है। ओनली दशहरा और दिवाली के टाइम में प्रिंट में एडवर्टाइजमेंट आया है। अगर आपको याद होगा, अक्टूबर तक प्रिंट में ऐड था ही नहीं, और पर्टिकुलरली मार्च का आखिरी, अप्रैल और मई और जून अखबार छपे भी नहीं है। जुलाई से धीरे धीरे छपना शुरू हुआ है। सो अखबारों की हालत 2020 में बहुत खराब हुई है, और आगे उसका इनकम का लेवल बहुत खराब रहेगा। आज क्यों अधिकतर अखबार, इवन टेलीविजन में भी, टेलीविजन ने अपने रेट काफी घटा दिए हैं पहले से, बट टेलीविजन में भी इनकम घटा है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आज क्यों लगता है कि अधिकतर मीडिया गोदी मीडिया या सरकारी मीडिया हो गया है? इसलिए हुआ है कि सरकारी अब सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। अगर आप देखो, सरकारी प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के ही एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा है।
तब चूंकि सब मीडिया को सरकारी एडवर्टाइजमेंट के पैसे पे जिंदा रहना पड़ता है, so they cannot take a very strong stand against the government. This is the reality of life. अच्छा लगे बुरा लगे की बात नहीं है, दिस द रियलिटी। लेकिन इकोनॉमिक जैसा जैसा ग्रो होगा उसी तरह एडवर्टाइजमेंट मार्केट फिर से खुलेगा और लोगों को भी जो पसंद है, जिस मीडिया को पसंद है उसके लिए ज्यादा खर्चा कर रहे हैं लोग। आप टीवी के कनेक्शन में ज्यादा खर्चा कर रहे हो 3 साल पहले से, तो लोग खर्चा कर रहे हैं, लोगों का नेट कनेक्शन में भी खर्चा बढ़ रहा है। सो देयर विल बी न्यूअर avenues to spend, newer media and newer advertising also. बट डिजिटल में एडवर्टाइजिंग पिछली बार से अभी ये साल में 2020 में जहां तक मुझे मालूम है 22% बढ़ा है। मतलब 2019 में 100 रुपया था तो 122 रुपया हुआ है डिजिटल में। प्रिंट और टीवी दोनों में ही घटा है। Thank you very much, sir. Sir, we have a lot of the questions from the participant side as well as from the student side. But if you permit the question because you are a student, so दो क्वेश्चन लीजिए। Okay, so okay, sir. So another question is what kind of the challenges faced in the production in media and the entertainment industry? Challenges of in production especially. प्रोडक्शन में जो मेन हो रहा है वो एक है कि पहले जो बजट मिलता था प्रोडक्शन का वो बजट अभी नहीं मिल रहा है। जो चैनल 9 लाख एक एपिसोड के लिए 8 लाख देता था अब वो 4 लाख दे रहा है। तो आपको बहुत प्रोडक्शन में लोगों को कम करना जरूरी है, मल्टी स्किल्ड होना जरूरी हो रहा है, कैरेक्टर्स को घटाने जरूरत हो रहा है फिक्शन है तो। सो प्रोडक्शन में बजट के हिसाब से कैरेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन कॉस्ट ये सब घटाना जरूरी हो रहा है और कागज में प्लानिंग परफेक्ट होना जरूरी हो रहा है। पहले क्या होता था, कागज में एक रफ लिखा होता था, प्रोग्राम में बैठ के लोग चेंज करते थे, अब वहां से हटने लगे, अब एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली कागज में जो है वही कर रहे हैं जिससे कि जल्दी प्रोडक्शन हो पाए। तो फास्टर, जो कहानी 5 दिन में शूट होती थी अब 3 दिन में होने लगा है, तो फास्टर प्रोडक्शन होने लगा है, फास्टर एंड लो कॉस्ट, लेस नंबर ऑफ पीपल, दीज आर द चेंजेस दैट हैव हैपेंड। लास्ट क्वेश्चन लीजिए। Sir, the last question is that during the pandemic, the content demand is increase in part of the audience and the viewers, but the production is not done at that time is very much. So, how do media and entertainment industry? क्वेश्चन नहीं समझा, पहला सेंटेंस समझाओ, लास्ट वाला सेंटेंस नहीं। Question is that during the pandemic, the content demand is increase in the media and entertainment industry, but the production is decreased. So how the media industry is the manage this kind of things? Okay. Media and entertainment industry. How they managed? एक तो है they have repeated the past production. आपने देखा होगा कि महाभारत दोबारा दिखाया गया है, रामायण दोबारा दिखाया गया है, बहुत सारे और जो सीरियल्स हैं सारे चैनल्स के पुराने अच्छे सीरियल को दोबारा दिखाया गया, बहुत सारे सीरियल्स। मैं बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ लेकिन मम्मी भी बोल रही थी और पहले जब वो थी और बाकी लोग भी देख रहे, जो दोस्त लोग अखबारों में भी आ रहा था, रिपीट हुआ है। उसके बाद अभी बनने लगा है नए सीरियल्स, जो चल रहे थे वो उसके नए एपिसोड बनने लगे। नए एपिसोड में भी आप देखोगे कि जिस तरह की कहानी अभी बन रहा है, सेट बहुत छोटा सेट है, लोग कम हो गए हैं, यू नो देयर आर सम एक्सपेंसेस घट रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। और एक चीज जो हो रही है, बहुत सारे प्रोग्राम नॉन फिक्शन, गेम शो, टॉक शो, चैट शो और कोई भी एडवेंचर शो इस तरह का हो रहा है जिसमें बहुत ज्यादा सेट की जरूरत नहीं है, इंडोर के अंदर ही सेट पे कर सकते हैं। कपिल शर्मा का जो शो है ऑडियंस बिना शूट हो रहा है, आपने देखा ही होगा, पीछे ऑडियंसेस के चेहरे लगाए हुए हैं, मतलब पेंटिंग फोटोग्राफ लगाए हुए हैं, सिर्फ 7-8 आदमी है शूट में। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं जो पहले नहीं थे, बट समय के साथ ये चेंजेस पैंडेमिक को ध्यान रखते हुए करना जरूरी है। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। I have consciously used English and Hindi together so that we can talk freely and everyone can get all the ideas hopefully, and also lot of examples and practical work I've tried to keep it. Please understand, media is not about heavy theory or concepts. Media is about practice. Practice जितना अच्छा करेंगे, भाषा पे दखल जितना अच्छा होगा। मैं जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं मैं उनको कहना चाहूंगा, रावत सर जब लिखते थे वेब दुनिया के, मैं बहुत सारा आर्टिकल पढ़ा, कितना डिटेल में लिखते थे, कितने लोगों को कोट करते थे। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दिस हैबिट ऑफ राइटिंग इन डिटेल्स, कोटिंग पीपल, टॉकिंग टू। आप अगर लोगों से रिलेशन नहीं बनाएंगे, नेटवर्क नहीं बनाएंगे, तो आप मीडिया में एक्चुअली काम नहीं कर पाएंगे।
इवन मीडिया एकेडमिक्स में भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, रावत सर जब से ज्वाइन किए रोज एक नए टीचर, नए स्पीकर को, नए एक्सपर्ट को ला रहे हैं। ये नेटवर्क के कारण है। तो नेटवर्क भी एक एबिलिटी है, ये भी जरूरी है मीडिया के संदर्भ में। इन बातों के साथ रख रहा हूँ, मौका मिले फिर कभी आप लोगों से मुलाकात होगी। अच्छा लगा, आशा करते हैं कि ये पूरी बात आपको प्रैक्टिकली समझने में मदद करेगा। आवश्यकता पड़े तो मैं ये प्रेजेंटेशन रावत सर को भेज दूंगा, आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं। मैं कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे विश्वास नहीं करता। जितना नॉलेज शेयर करेंगे उतना नॉलेज बढ़ता है, जितना आप शेयर करोगे उतना आगे बढ़ता है। थैंक यू। Thank you very much, sir. Sir, you told about the media and entertainment channels. You told about the new media to inform, to the educate, and you told about the new media and the late convergence. You told about the new media and the new normal and digital age, the television in the new normal and the changing. You told about the radio in the new normal. You told about the digi branding and the advertising in the new normal. You told about the brand communicate the most urgent and the branding advertising in the new normal, online PR, reputation management, e-event, physical event, with the new terminology of physical events. And you told the business media business model ahead, the project-based job, media education for tomorrow, and you also discuss about the, in your concluding remark, about the 7 degrees around the communication and about the crowdsourcing, and you also first that the Indian language media is a 93% exists in the country, compared to the English media is the 7%. Right. So thank you very much, sir, for your fabulous full talk and master talk. I know you have done analysis on behalf of the Parel University, on behalf of the Parel University management, on behalf of the Parel University management, on behalf of the Honorable President, sir. Thank you, sir. On behalf of the Parel University management, on behalf of the Parel University Vice Chancellor, sir, on behalf of the Parel University Registrar, sir, I thank you. And also thank you our technical team who's the manage the entire this online program, this online webinar, and there's no technical glitches come. So I thankful, and I'm thank you to our technical team. And also thank you our entire team, our faculty members, those they are working with together and they are giving their support, especially to Mr. Achinder Katiyar, Gopi, Miss Gopi Shah, and Mr. Shivam Balevar. So I thank to all of you, and again I thank you very much, sir. Thank you very much for your wonderful talk, your master talk, and this fabulous session. And on my just one or twice request, you accept the request and you join with us on this webinar platform. We love to see you again and again, and not only on webinar platform, we want to love to see you again and again as a physical in our university. So thank you very much, sir, and again thank you very much, sir. Thank you very much, sir.